टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। प्रेजेंटेड बाय ट्रेड बुल्स। अब ट्रेडिंग सबके बस की बात है। હેલો, સ્વાગત આપનું ક્લોઝિંગ કેપિટલમાં. હું યશ આપની સાથે. સૌ કોઈને ગુડ આફ્ટરનૂન. ભારતીય માર્કેટ્સ ફરી એક વખત નાનકડી રેન્જ બતાવતા જોવા મળ્યા, પણ હા, આજે થોડું દબાણ જરૂર જોવા મળ્યું છે. તો તે બાદ શું હવે ફરી એકવાર ખરીદદારી આવશે કે પછી માર્કેટ્સ થોડું દબાણ વધુ બતાવશે તે સમજીશું, પણ શરૂઆત હેડલાઇન્સની સાથે કરીશું. બજારની શરૂઆતની તેજી ઘટી. નિફ્ટી 70 પોઈન્ટ ઘટી 25,130 નજીક. સેન્સેક્સમાં ફ્લેટ કારોબાર. આઈટી પીએસયુ શેરથી બજારને સહારો. बैंक निफ्टी 150 पॉइंट घटी 56,700 आसपास. आईसीआईसीआई बैंक निफ्टीનો ટોપ લૂઝર. એસબીઆઈ એચડીએફસી બેંકે પણ નિફ્ટી પર બનાવ્યું દબાણ. નિફ્ટી આઈડી 3 મહિનાની ઊંચાઈ પર. ટેક મહિન્દ્રા નિફ્ટીના ટોપ ગેનર્સમાં. એલટીઆઈ, માઇન્ડટ્રી, ઇન્ફોસિસ, ટીસીએસમાં 3% સુધીની તેજી. મિડ અને સ્મોલ કેપમાં તેજી યથાવત. જિંદાલ 100 ડેટા પેટર્ન્સમાં 8% સુધીની તેજી. તો અન્ય મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ શેરમાં પણ તેજીનું એક્શન. મેટલ શેરની ચમક વધી. નાલ્કો હિન્દુસ્તાન ઝિંકમાં 2% સુધીની તેજી. તો વેદાંતા સહિત અન્ય મેટલ શેરમાં પણ સારી તેજી. અને આ સરેજ ભારતીય માર્કેટ્સ પર એક વખત નજર કરી લઈએ આપણે. દિવસની શરૂઆત એક સરસ મોમેન્ટમ સાથે કર્યા બાદ ઘટાડો આવ્યો 25,055 સુધી. ત્યાંથી ફરી 25,100 ઉપર અને ગઈકાલના ક્લોઝથી સતત ઉપર નિફ્ટી રહી રહ્યો છે. હવે છેલ્લો 1 કલાકનો સમય, એટલે હવેની જે મૂવમેન્ટ છે તે બહુ જ રસપ્રદ રહેશે. બેંક નિફ્ટી પણ સતત દિવસભર લાલ નિશાનમાં રહ્યો છે. રેકોર્ડ બનાવ્યા બાદ સતત બીજો દિવસ છે આજના દિવસે. ગઈકાલે રેકોર્ડ બનાવ્યા હતા, આજે રેકોર્ડને નજીક ઓપન થયા હતા અને બંને દિવસે કેન્ડલ લાલ નિશાનની જ બની છે. ટેન્શન થોડું આવ્યું છે, ત્યારે સમજવાનું રહેશે ચાર્ટ્સ પર શું પરિસ્થિતિ છે. સહયોગી યોમિક આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. યોમિક, ગુડ આફ્ટરનૂન. સમજીએ ભારતીય માર્કેટ્સને એકદમ લિનિયર 2 દિવસથી નાની રેન્જમાં ફસાઈ જાય છે, પણ ઉપરના સરોથી થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ પણ આવે છે, જ્યારે સપોર્ટ લઈને માર્કેટ ખરીદદારી પણ બતાવે છે. એટલે કે બંને તરફી કારોબાર જોવા મળી રહ્યા છે. જી બિલકુલ, યસ, ગુડ આફ્ટરનૂન. આપણે જોઈએ તો છેલ્લા 2 દિવસથી માર્કેટ આપણને એકદમ નાનકડી રેન્જમાં કારોબાર જોવા મળે છે. ઇવન આજની તમે જો નિફ્ટીની જો રેન્જ જોશો ને તો એમ થશે કે આ સાચેમાં આજે માર્કેટ ચાલુ હતું કે બંધ હતું, એવો એક સમય આપણને ક્વેશ્ચન થઈ જાય. અને એમાં પણ છેલ્લા 1 કલાકનો તો સિરિયસલી તમે જોઈએ તો આપણે એટલી ડોજી કેન્ડલ આપણને એટલી બધી બનતી જોવા મળી છે ને, એમ લાગતું જ નથી કે આજે આપણને સેન્સેક્સની એક્સપાયરી હોય. કારણ કે પાસ્ટમાં આપણે છેલ્લી 10 એક્સપાયરી પણ જોઈ લઈશું ને તો સેન્સેક્સની એક્સપાયરી આપણને ઓલમોસ્ટ તમે જોશો તો વોલેટાઇલ સેશન જોવા મળતો હોય છે. પરંતુ આજે તમે નજર કરો તો તમને એકદમ નાની લિનિયર રેન્જમાં કારોબાર જોવા મળે છે. હવે આ લિનિયર રેન્જ બાદ આગળ કયા લેવલ છે કે જે વોચ આઉટ કરવાનું રહેશે આવતીકાલ માટે, આવો એની પર સૌથી પહેલાં નજર કરી લઈએ. સૌથી પહેલાં નિફ્ટીનું સેટઅપ આપણે એક વખત જોઈ લઈએ. નિફ્ટીના સેટઅપમાં જોઈશું ડેઇલી કેન્ડલમાં તો આપણને 2 કેન્ડલ છેલ્લા 2 દિવસથી મજબૂત ઓપનિંગ બતાવે છે. તમને જે નવા રેકોર્ડ હાઈ સાથે ઓપનિંગ પણ બતાવે છે. નવા રેકોર્ડ હાઈ એટલે કે આપણને જે છેલ્લા જે હાઈ બને તે 25,000 એની ઉપરની વાત કરી રહ્યો છું. 25,000 ઉપર આપણને અહીંયાથી હાઈ પણ ઓપન જોવા મળે છે, પરંતુ તમે જુઓ તો ટકતું નથી. તમે જો ગઈકાલે તમને ઓપનિંગ સારી એવી થઈ, પરંતુ તમે જે કેન્ડલ બની એ સારી નથી બની. આજની કેન્ડલ જો તે પણ તમને સારી એવી નથી બનતી જોવા મળી રહી. હવે આવા કેસમાં એક સિમ્પલ લોજિક એ જ કરવાનું કે તમે આજનો જે હાઈ તમને જે બન્યો તો 25,199, એટલે કે ઓલમોસ્ટ તમારા માટે ઉપરની તરફ 25,200નું લેવલ થયું. 25,200 આ તમારું એક પહેલું રેઝિસ્ટન્સ થઈ ગયું, રાઈટ. આ એક રેઝિસ્ટન્સ. હવે નીચે સપોર્ટ તરીકે તમે નજર કરશો તો આજનો લો અને તમે આવતીકાલનો લો, એ બે તમે લો જો નજર કરશો તો તમારા માટે એ બનશે 25,055 આજુબાજુ. હા, તમે ગઈકાલનો લો જોશો ત્યાં પણ તમારું ઓલમોસ્ટ 25,060-70 હતો અને આજનો લો પણ તમને ત્યાં જ જોવા મળી રહ્યો છે. એટલે કે આ નીચે તમારો સપોર્ટ થઈ ગયો, રાઈટ. હવે કે જ્યાં સુધી તમારો સપોર્ટ ના તૂટે ત્યાં સુધી તમને નીચેની તરફ આ લેવલ અને ઉપરની તરફ આ લેવલ, આની વચ્ચે એક માર્કેટ એક કન્સોલિડેશન પીરિયડમાં જોવા મળી શકે. હવે નવી તેજી યા મંદી તમને જોવા મળશે તો આ લેવલને ઉપર બ્રેકઅપ યા બ્રેકડાઉનમાં જોવા મળશે. કોઈ કારણસર માની લો કે આ લેવલ તમે બ્રેક થાવ છો તો 25,000નું એક લેવલ છે કે જ્યાં તમને અહીંયાથી પુટ રાઇટિંગ જ્યાં જોવા મળી રહ્યું છે, એટલે કે પુટ રાઇટિંગનો સપોર્ટ છે. જો 25,000નું પણ લેવલ ના જળવાય તો નીચે તમારા માટે હવે આવશે લેવલ, એ છે 24,800નું લેવલ આવશે.
જે તમારે ખાસ અહીંથી ફોકસ રાખવાનું રહેશે. 24,865 એટલે આ લેવલ છે કે જ્યાં તમે જોયું તો આ ફાઇનલી ઘણા દિવસોના કન્સોલિડેશન બાદ તમે આ બ્રેકઆઉટ આપ્યું હતું. એટલે કે કોઈ કારણસર એક તો આપણે આ વાત કરેલી છે ઓલરેડી કે જે તમારું લેવલ છે અહીંયા 25,030 કે જે ગેપ પૂરો થવાનો તમે આજે ઓલમોસ્ટ તમે જુઓ મેં તમને કીધું હતું અને આજે તમારું એ જે ગેપ છે એ પૂરો થતો જોવા મળ્યો જ હતો. 25,030 મેં વાત કરી હતી, 25,055 તમને આજે જોવા મળ્યું. તમે ભલે મજબૂતી સાથે આપણે ઓપન થયા પરંતુ ઓપનિંગ બાદ તમે જોયું તો નફા વસૂલી આવી, કારણ કે આ જે ગેપ હતો આપણે થોડુંક અહીંયા ક્લિયર કરી દઈએ. આ જે ગેપ હતો જે આપણે વાત કરી હતી ગઈકાલે કે આપણને આ એક વખત પૂરો થતો જોવા મળી શકે પણ હજુ થયો નથી. 25,055 થી તમે યુ ટર્ન લીધો છે એટલે કે હજુ પણ 25,030 એ એક વખત તમને અહીં આવતા જોવા મળી શકે. પછી ત્યાંથી યુ ટર્ન લે છે કે નહીં જોવા રહેશે. જો 25,030 થી યુ ટર્ન ના લે તો 25,000 જેમ વાત કરી પુટ રાઇટિંગ છે ત્યાં આપણને સપોર્ટ મળશે. ના મળે તો પછી તમારા માટે અહીંયાથી આવશે લેવલ 24,845 એ આ લેવલ આવશે કે જે ઘણા કન્સોલિડેશન બાદ તમને અહીંથી બ્રેકઅપ આવ્યું હતું અને ઇવન તમે 24,880 જોશો જ્યાં તમારી 10 ડે એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ આવશે. એટલે નીચેની તરફ તમે 24,800 થી લઈને 24,900 આ એક તમારું મેઇન અહીંયાથી પોઝિશનલી સપોર્ટ થઈ ગયો અને આવતીકાલ માટે તમારો સપોર્ટ કયો રહેશે? આજનો લો 25,055 અને જો કોઈ ચાન્સીસ હશે 25,055 બ્રેક થાય તો 25,030 જે ગેપ છે એ પૂરો થતો આપણને જોવા મળી શકે. સિમ્પલ ઉપર નવી તેજી ક્યારે કરીશું? 25,200 જે આજનો હાઈ છે 25,199.30 એટલે કે 25,200 એને આપણે રેઝિસ્ટન્સ લઈને જઈશું. એની ઉપર જો માર્કેટ ટકવાના પ્રયત્નો બતાવે એટલીસ્ટ 15-20 મિનિટ અહીંયાથી આપણને જે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે એ બાદ આપણે અહીંયાથી નવી તેજી માટે અહીંયાથી મુવમેન્ટ આપણને જોવા મળી શકે છે. એટલે પોઝિશનલ વ્યૂ જ્યાં સુધી આ લેવલ આપણે અહીંથી ક્લિયર ના થાય ઉપરની તરફ 25,200 નીચેની તરફ 25,055 જ્યાં સુધી વચ્ચે માર્કેટ રહેશે આપણને એકદમ નાનકડી લિનિયર રેન્જમાં જ કારોબાર જોવા મળી શકે છે. આવો 15 મિનિટ ઉપર નજર કરી લઈએ. 15 મિનિટ તમે જોશો તો તમને જોઈ જશે કે યાર આ શું છે. તમે નજર કરો છેલ્લા 2 દિવસથી તમે નજર કરો તો ગઈકાલે પણ એકદમ નાનકડી રેન્જમાં તમને કારોબાર જોવા મળ્યો. આ રેન્જ બાદ આપણને અપેક્ષા હતી કે સેન્સેક્સની એક્સપાયરી જે એઝ યુઝ્યુઅલ આપણી હિસ્ટ્રી રહી છે કે મોટી વોલેટિલિટી જોવા મળી છે પરંતુ આજે તમે જો ઓપન મજબૂતી થયા સાથે પહેલી તમને જે 15 મિનિટમાંથી એમાં હાઈ વોલેટિલિટી જોવા મળી તમે ઉપરથી એકદમ તમે નીચે આવી ગયા ઓલમોસ્ટ 100 પોઈન્ટ પરંતુ તમે નજર કરો એ બાદ એકદમ નાનકડી રેન્જમાં જે ગઈકાલની જે રેન્જ હતી ને એ જ રેન્જમાં તમે ફરીથી આવી ગયા. એટલે નીચેની તરફ 24,100 છે અને ઉપરની તરફ 24,150. આ 50 પોઈન્ટની એક રેન્જ એટલી આપણને અહીંથી વારંવાર નડતર રૂપ રહી છે કે તમે જુઓ કે એની વચ્ચે જો તમારો કારોબાર આવ્યો તો ત્યાં તમે ફસાઈ જાઓ છો. એટલે આ એક લેવલ છે જે વોચઆઉટ કરી રહેશે અને જે ગેપ આજે પૂરવા કરવાનો પ્રયત્ન કરી આજે ગેપ તમને જોઈ રહ્યા છો એ આજે નહીં થયો એટલે આજ નહીં તો કાલ આપણને ગેપ પૂરો થતો જોવા મળી શકે 25,030 અને જે બાદ 24,845 જેમાં ઓલરેડી આપણે વાત કરી એ લેવલ આપણે ખાસ અહીંથી ફોકસ કરીશું. આ વાત થઈ ગઈ આપણે 15 મિનિટની. આવો હવે નજર કરી લઈએ ઓઆઈ ડેટા ઉપર. ઓઆઈ ડેટા ઉપર નજર કરો તો ત્યાં તમને ડેટા ઓલમોસ્ટ મિક્સ જોવા મળશે કારણ કે સ્વાભાવિક છે કે તમારો કારોબાર પણ ઓલમોસ્ટ મિક્સ થઈ રહ્યો છે. 25,100 તમે શા માટે આપણે અહીંયા કન્સોલિડેશન થઈ રહ્યા છે? 90 લાખ પોઝિશન કોલ રાઇટિંગ, 90 લાખ પોઝિશન પુટ રાઇટિંગ બંને તરફથી આપણે જોયું કે એક જ પોઝિશન આપણને અહીંથી જોવા મળી રહી છે. હવે 25,000 મેં તમને કીધું મેઇન સપોર્ટ છે કે જ્યાં તમને અહીંથી બાય ઓન ડીપ જોવા મળી જાય કારણ કે તમારા માટે ત્યાં 1 કરોડ પુટ રાઇટિંગ તમને જોવા મળી રહ્યું છે એટલે સારો સપોર્ટ તમને અહીંયાથી મળશે. અને બીજું આગળ તમને અવરોધ છે 25,200 એટલા માટે જ મેં તમને કીધું કે નવી તેજી આપણે 25,200 ને ઉપર તમે સસ્ટેન કરો છો. જો તમે 15-20 મિનિટ અને તો વધારે કન્ફર્મેશન যদি ઇવન 1 કલાક વેઇટ કરો 25,200 ની ઉપર માર્કેટ 1 કલાક ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે એ બાદ નવી તેજી માટે અહીંથી આપણે ઇનિશિએટ કરી શકીએ છીએ અને જે બાદ આપણને અહીંથી 25,400-500 પણ લેવલ જોવા મળી શકે પરંતુ 25,200 જ્યાં સુધી એની ઉપર માર્કેટ કોન્ફિડન્સ ના બતાવે ત્યાં સુધી આપણને એક અહીંયા હાલ એક કહી શકાય કે નડતર રૂપ રહેશે કારણ કે જે રીતે એફઆઈઆઈનું શોર્ટ પોઝિશનમાં આપણને વધારે જોવા મળી છે સ્વાભાવિક છે કે આજ નહીં તો કાલે એમને શોર્ટ કવર કરવો જ પડશે અને જ્યારે કવર કરશે ત્યારે આ 25,200 લેવલ છે કે જે આપણને બ્રેક થતું જોવા મળી શકે. નીચેની તરફ 25,000 એક લેવલ છે કે જે આપણને હાલ મેઇન ફોકસ સપોર્ટ મેઇન 25,000 અવરોધ 25,200 અને મેઇન મેક ઓર બ્રેક લેવલ એ તમારા માટે 25,100. આ આપણે વાત થઈ ગઈ ઓવરઓલ ઓવાઈ ચેન્જ લઈને આવો. આજે તમે જોશો તો ઓવાઈ ચેન્જમાં પણ તમને 25,100 જ એક લેવલ છે કે જે હાઇલાઇટ થશે. નજર કરો 25,100 કે જ્યાં તમારા જે પુટ રાઇટિંગ આવ્યા જેના કારણે તમે નીચે ગયા પરંતુ ઉપર ફરીથી આવી ગયા કારણ કે તમને ત્યાં પુટ રાઇટિંગ કોલ રાઇટિંગ કરતાં આજે થોડુંક વધારે જોવા મળ્યું. પણ બીજું તમે નજર કરો 25,150 કે જ્યાં તમે એની ઉપર નથી જઈ રહ્યા કારણ કે ત્યાં કોલ રાઇટર્સ પણ આજે પુટ રાઇટિંગ કરતાં વધારે આવ્યા. 25,200 કે જ્યાં આજે આપણને જોવા મળ્યા છે ઓલમોસ્ટ
કોલાઇડર્સ, એટલે આ એક રેન્જ થઈ ગઈ છે 25,000 થી 25,200, જે આપણને ખાસ કરીને અહીંથી ફોકસમાં રહેશે. એટલે ઓવરઓલ આ વાત થઈ ગઈ આપણે નિફ્ટીની, કે જ્યાં તમારે ખાસ કરીને ફોકસ હોવું જોઈએ. એટલે કે 25,120 અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો નિફ્ટીમાં. બેંક નિફ્ટી 56,650 ઉપર કારોબાર કરી રહ્યું છે. બેંક નિફ્ટીમાં તમે જુઓ તો આજે એક દિવસ તમે જોશો તો આજના દિવસે તમને લેવલ જોવા મળે 56,570, 500નું લેવલ જાળવવા મળ્યું છે. શા માટે? એ બ્રેક પર નજર કરીએ તો ફટાફટ એક નાનકડો બ્રેક લઈ લઈએ, જે બાદ બેંક નિફ્ટીના સેટઅપ પર નજર કરીએ. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. નિફ્ટીને આપણે સમજ્યા લેવલ કે આપણને એક નાનકડી રેન્જમાં કન્સોલિડેશન જોવા મળી રહ્યું છે, પરંતુ હવે બેંક નિફ્ટી ઉપર નજર કરી લઈએ. બેંક નિફ્ટી તમે જોયું તો છેલ્લા 2 દિવસથી થોડુંક વધારે દબાણમાં છે. સ્વાભાવિક છે કે જે રીતે આપણને તેજી જોવા મળી હતી, એમાં પણ સ્પેશિયલી સરકારી બેંકમાં, એટલે ત્યાં આપણને થોડી નફા વસૂલી જોવા મળી. પ્રાઇવેટ બેંક તો આપણે જોયું જ હતું કે સપોર્ટ નથી મળી રહ્યો. માત્ર 1-2 પ્રાઇવેટ બેંક છે, જેવી એવી બેંક છે એક્સિસ, કોટક, કે જે આપણને મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે, પરંતુ જેની મજબૂતી જોઈએ છે ICICI બેંક ને HDFC બેંક, જે નર્વસ છે. એ જ કારણથી આપણને ત્યાં થોડુંક વધારે પ્રેશર જોવા મળ્યું છે. હવે આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી નિફ્ટીમાં ગેપ પૂરો થઈ શકે, ત્યાં ઓલમોસ્ટ આપણે રહી ગયા 25 પોઈન્ટથી. બેંક નિફ્ટીમાં પણ વાત કરી ગેપ પૂરો થશે, અને ત્યાં તમે નજર કરો, ત્યાં તમે આજે ગેપ હતો એ તમે આજે પૂરો કરી દીધો, રાઈટ. એ આપણને જે વાત કરી હતી એ લેવલ તમને અહીંથી જોવા મળ્યું, પરંતુ હવે તમે જ્યાં સપોર્ટ લીધો એ તમે નજર કરો. સપોર્ટ તમને અહીંથી જોવા મળે તો તમારું જે આજે તેજી આવી હતી એનું જે ક્લોઝિંગ લેવલ હતું, એ ક્લોઝિંગ તમારું લેવલ હતું 56,574 આજુબાજુ, અને એક્ઝેક્ટ તમારું લો આજે ત્યાં બન્યો, અને ત્યાંથી તમે આજે સપોર્ટ લીધો છે. એટલે હવે તમારા માટે 56,500 એ તમારા માટે એક મહત્વનું લેવલ છે. એટલે કે આજનો લો 56,500 ને તમારો જોશો તો એક્ઝેક્ટ 56,570, આ તમારા માટે પહેલો સપોર્ટ રહેશે, બરાબર. 56,570, એ બાદ 56,500 પણ લઈ લો, કારણ કે ત્યાં તમારા માટે પુટ રેટિંગ છે. એટલે આ લેવલ તો મહત્વનું છે. કોઈ કારણસર માની લો તમે એ બ્રેક કરો છો તો નીચે તમારા માટે આવશે 56,090નું લેવલ. આ લેવલ શા માટે? તો તમે જોશો તો અહીંયા એક વખત આ એક લેવલ હતું, ઇવન અહીંયા પણ નજર કરો, આ 2 વખત તમે આ લેવલથી તમે અવરોધ આવ્યો હતો, અને ફાઇનલી એ બ્રેકઆઉટ આપ્યું હતું. અને બીજું તમારા માટે 10 દિવસની એક્સપ્લેનેશન મૂવિંગ એવરેજ આવે છે. હવે તમે 10 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ જે છે શા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો નજર કરો. અહીંયા 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 કન્ટિન્યુ તમે જોશો તો છેલ્લા આપણે મે મહિનાથી તમે લઈ લો, આખો મે મહિનાથી લઈને તમને અહીંયાથી 10 દિવસની એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ છે ત્યાં ટચ કરે છે અને માર્કેટ ઉપર આવે છે. એટલે કોઈ કારણસર માની લો કે અહીંયા તમને ઘટાડો જોવા મળે તો આ એક લેવલ છે કે જ્યાં તમને પરફેક્ટ બાય ઓન ડીપ જોવા મળી શકે. પરંતુ ક્યારે આપણે જ્યારે 56,500 બ્રેક કરે તો 56,500 બ્રેક ના કરે તો સ્વાભાવિક છે કે આપણે અહીંયાથી તેજી જોવા મળે. પરંતુ કોન્ફિડન્સ ક્યારે? નવી તેજીનું કોન્ફિડન્સ આપણે જોઈશું તો જે આપણને જે ઓલ ટાઈમ હાઈ બન્યા હતા 57,049, એ આપણે અહીંયાથી જોઈશે હવે, કે જેને અહીંયાથી ક્રોસ ઓવર જરૂરી છે. આઈધર કે તમે અહીંયાથી ડેઇલી ચાર્ટમાં તમે ક્રોસ કરો, કાં તો તમે ઇન્ટ્રાડેમાં જો તમે 57,049 ક્રોસ કરો છો તો એની ઉપર 15 મિનિટની કેન્ડલ ક્લોઝ થવી જોઈએ, અને એને ફર્ધર ફોલોઅપ કેન્ડલ બનવી જરૂરી છે. એ બાદ આપણે અહીંથી નવી તેજીની એક્સપેક્ટેશન રાખીશું, અને એક્સપેક્ટેશન 57,500 અને 58,000, કારણ કે આપણે પહેલાં વીકલી ચાર્ટમાં પણ વાત કરેલી છે કે વીકલી ચાર્ટમાં આપણને 58,000 લેવલ આપણને અહીંથી જોવા મળી રહ્યા છે. એટલે એ તો આપણને સ્વાભાવિક છે કે આવતા જોવા મળશે, પરંતુ કોઈ કારણસર ઘટાડો આવે તો લેવલ ખરીદીના જેમ આપણે વાત કરી નીચે 57,500 આ એક લેવલ છે જ્યાંથી આજે આપણને સપોર્ટ મળ્યો છે. આવતીકાલે પણ એ લેવલ આપણે સપોર્ટ તરીકે જોઈશું. કોઈ કારણસર જો ત્યાં આપણને કોન્ફિડન્સ ના મળે, તમે બ્રેક કરો છો તો નીચેની તરફ તમારા માટે લેવલ આવશે, એ તમારા માટે છે અહીંયાથી 56,090. એ તમારે ખાસ કરીને અહીંથી ફોકસ રાખવાનું રહેશે. એટલે આ વાત થઈ ગઈ આપણે પોઝિશનલી. આવો 15 મિનિટ નજર કરો. 15 મિનિટમાં જોશો તો અહીંયા પણ સેમ નિફ્ટીની જેમ તમને એકદમ નાનકડી રેન્જમાં કારોબાર જોવા મળે, પરંતુ તમે નિફ્ટીની જે કમ્પેરમાં બેંક નિફ્ટીમાં જે પહેલો જે 15 મિનિટનો જે ઘટાડો આવ્યો એ વધારે જોવા મળ્યો છે. તમે જોશો તો તમે 57,000ની ઉપર આજે તમે ઓપન થયા, ઓલમોસ્ટ તમારે જે રેકોર્ડ હાઈ હતા એની આજુબાજુ તમે ઓપન થયા બાદ તમને એક જ ઘટાડામાં તમે નીચે આવી ગયા, અને એક્ઝેક્ટ તમે સપોર્ટ લીધો તમારો જે ક્લોઝિંગ હતું. તમે પરમ દિવસનું તમારું જે ક્લોઝિંગ હતું ત્યાંથી તમને અહીંયા સપોર્ટ મળ્યો, અને ત્યાંથી તમે ઉપર જવાનો એટેમ્પ કર્યા, 10 EMAથી રિજેક્શન આવ્યું, ફરીથી નીચે આવ્યા, અને આજ તમે લેવલ નજીક કરો, ફરીથી તમે એ લેવલથી તમને સપોર્ટ મળ્યો અને તમે ઉપર ગયા, અને ત્યાર પણ તમે જોશો તો 56,640, એટલે એક્ઝેક્ટલી તમે અહીંયા જ કારોબાર કરી રહ્યા છો. એટલા માટે મેં કીધું કે આ લેવલ તમારા માટે મહત્વનું છે. નીચેની તરફ અહીંયા આપણે વાત થઈ 56,570 થી 56,500, આ 70 અંકની રેન્જ ફોકસ કરીશું આવતીકાલ માટે. અને જેમ વાત કરી જોઈએ સસ્ટેન ના થાય તો નીચે 56,090 જ્યાં તમારા
તમારા માટે ટ્રેન્ડ એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ છે કે જ્યાંથી આપણને વારંવાર સપોર્ટ મળવાના પૂરેપૂરા પ્રયત્નો જોવા મળે છે, એટલે ત્યાં આપણું ફોકસ હોવું જોઈએ. આવો હવે ઓવાઈ ડેટા ઉપર નજર કરીએ. ઓવાઈ ડેટા નજર કરશો 56,500, ત્યાં પણ તમારા માટે હાઇલાઇટ થશે. તમે નજર કરો તો ત્યાં તમને કોલ રાઇટર્સ પુટ રાઇટિંગ જોવા મળ્યું છે. હા, એટલી સંખ્યામાં નથી જોવા મળી, પરંતુ કમ્પેર ટુ કોલ રાઇટર્સ પુટ રાઇટર્સ ઇઝ હાયર. તમે એ નજર કરો. અને બીજું તમારા માટે મેં કીધું 56,090 જ્યાં 10 EMA છે, અને સાથે તમારા માટે અહીંયા ઓલમોસ્ટ 21 થી 22 લાખ તમે નજર કરશો તો પુટ રાઇટિંગ પણ તમારા માટે જોવા મળી રહ્યું છે. એટલા માટે આ બે હાલ સપોર્ટ તરીકે કામ કરશે. હા, આ બે સપોર્ટ તમારા તૂટી જાય છે તો પછી એવું કહી શકાય કે બેંક નિફ્ટીની જે વન વે તેજી હતી એમાં હવે ફાઇનલી બ્રેક આવ્યો. જ્યાં સુધી આ બે લેવલ નથી તૂટતા, તમારા સપોર્ટ નથી તૂટતા, ત્યાં સુધી આપણે બાય ઓન ડીપ જોઈશું. અને ઉપરની તરફ નવી તેજી, નવું શોર્ટ કવરિંગ એ આપણા માટે 57,000 ખાસ કરીને ફોકસ હોવું જોઈએ. 57,000નું તમારું અહીંયાથી શોર્ટ કવરિંગ જો અહીંયાથી થાય તો એ બાદ તમને સારી એવી તેજી જોવા મળી શકે, અને ઉપર તમને આગળ 58,000 સુધીના પણ લેવલ બેંક નિફ્ટીમાં જોવા મળી શકે છે. પરંતુ હવે આપણે જોયું કે અત્યાર સુધીની આપણને જે મજબૂતી જોવા મળી એ સરકારી બેંકે કરી છે, જે કે પંજાબ નેશનલ બેંક લો, કેનેરા બેંક લો, બધી પંજાબની ઓવરઓલ સરકારી બેંક છે, એમણે સપોર્ટ આપ્યો છે SBI સહિત. પરંતુ હવે જે મજબૂતી જોઈએ છે આપણને બે બેંકો, એક તો ICICI બેંક અને HDFC બેંક. જે દિવસે આ બે બેંક સારી એવી તેજી બતાવશે એ દિવસે ફાઇનલી આપણા 57,000ની સાથે કોન્ફિડન્સ સાથે બ્રેક થતું જોવા મળશે. એટલે બંને સ્ટોક પણ આપણે બેંક નિફ્ટીની સાથે વોચઆઉટ પર ખાસ કરીને હોવા જોઈએ. આવો ઓવાઈ ચેન્જ નજર કરી લઈએ. ઓવાઈ ચેન્જ તમે નજર કરો તો આજના દિવસે તમને અહીંયાથી જે કોન્ફિડન્સ જે ગયો છે એ તમારા માટે પહેલાં નજર કરો તો અહીં તમારા માટે 56,000થી લઈને ઓલમોસ્ટ તમે નજર કરશો તો તમારા માટે આ એક 300 થી 400 સ્ટ્રાઇક રેટ છે. 56,200થી નીચે 55,600 સુધી ત્યાં થોડુંક આપણને અહીંથી હલચલ જોવા મળી છે. બાકી એડ ઓન તમને જોવા મળ્યું તે અહીંયાથી 56,500થી 56,700 આ એક રેન્જ છે કે જેની આ 3 સ્ટ્રાઇક રેટ છે કે જ્યાં તમને આજે મિક્સ ડેટા જોવા મળ્યો છે. અહીં નજર કરો, કોલ રાઇટિંગ વધારે જોવા મળ્યું, અહીંયા પણ કોલ રાઇટિંગ વધારે જોવા મળ્યું, એટલે કે પુટ રાઇટિંગ કરતાં કોલ રાઇટિંગ આજે થોડુંક હેવી થયું છે, કારણ કે તમે જોયું કે નિફ્ટી કરતાં બેંક નિફ્ટીમાં જે ઘટાડો વધારે આવ્યો છે ઉપલા સ્તરથી, એ જ કારણથી થોડુંક પ્રેશર બન્યું છે. એટલા માટે 56,500 અને 57,000 આ બે હવે આપણે ખાસ કરીને લેવલ ફોકસ કરવાના રહેશે. એટલે આ વાત થઈ ગઈ આપણે નિફ્ટી અને બેંક નિફ્ટી કે જ્યાં તમારે ખાસ કરીને ફોકસ હોવું જોઈએ. હવે ફરીથી એક વખત તમને રિપીટ કરી લઉં તો હવે આપણા માટે મેઇન અહીંયાથી ફોકસ રહેશે. નિફ્ટી માટે તમે નજર કરો 25,100ની આજુબાજુ તમે એટેમ્પ કરવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો. 25,100નું લેવલ છે એ તમારા માટે મેઇન છે. નીચેની તરફ તમારા પુટ રાઇટિંગ પ્રમાણે સપોર્ટ 25,000 ઉપર આવશે. ઉપર નવી તેજી 25,200 ને ઉપર. બેંક નિફ્ટી 56,500 મેઇન સપોર્ટ છે, જો એ પણ તૂટે તો 56,090 જ્યાં 10 EMA છે ત્યાંથી બાય ઓન ડીપ કરીશું, અને ઉપરની તરફ નવું શોર્ટ કવરિંગ 57,000ને પાર આપણે અહીંથી એક્સપેક્ટેશન કરી શકીએ છીએ. તો ઓવરઓલ આ વાત થઈ ગઈ આપણે નિફ્ટી બેંક નિફ્ટીની. ઓવર ટુ યસ. ઓકે, તો ઓવરઓલ ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફિક વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી બની રહ્યો છે. ઇવન મિડ કેપ સ્મોલ કેપ પણ અત્યારે ફિલહાલ જે ફ્લેટિશ થઈ ગયા હતા હવે ત્યાં પણ નજર જરૂરથી રાખવાની રહેશે. યોમિક પછી આગળ શોમાં આપના સાથે જોડાઈએ. મીનવાઇલ માર્કેટ સેજ રેન્જમાં છે, લગભગ કોઈ હજુ સુધી પરિવર્તન નથી. આવો એક વિરામનો સમય અને બ્રેક બાદ આગળની રજૂઆત યથાવત રાખીએ. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. ભારતીય માર્કેટ છે લિનિયર મૂવમેન્ટ બતાવી રહ્યા છે. સપોર્ટ લેવાની કોશિશ વારંવાર થઈ રહી છે, પણ એટલા કંઈ ખાસ પ્રયત્નો હજુ સુધી સફળ થયા નથી. મીનવાઇલ આજના દિવસે એક બહુ જ રસપ્રદ ડેટા પોઈન્ટ સામે આવ્યા છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડના દર મહિને એમ્ફી દ્વારા અમુક ડેટા સામે આવે છે, જેમાં તમને જાણ પડે કે ઇનફ્લો છે, આઉટફ્લો છે, લોકો મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પૈસા નાખી રહ્યા છે, નથી નાખી રહ્યા, બહાર કાઢી રહ્યા છે કે નહીં, આ સ્થિતિ થોડું સમજવાની રહેશે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ડેટા સામે આવ્યા છે. ફરી એકવાર જઈએ મારા સહયોગી યોમિક પાસે. યોમિક, જણાવો શું ડેટા પોઈન્ટ્સ સામે આવી રહ્યા છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીથી? જી બિલકુલ યસ. હવે આપણે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા એટલે કે એમ્ફીએ અહીંથી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીનો ડેટા સામે આપ્યો છે. મે મહિના આપણે જોયું તો આમને હા AUM વધ્યું છે, એ બધી વસ્તુ વધારો થયો છે, પરંતુ અહીંયા તમે જોશો ને તેમનો જે ઇક્વિટી ઇન્ફ્લો જે સ્પેસિફિક હોય એ એમાં અહીંથી ઘટાડો જોવા મળે છે. આવો આપણે સેગમેન્ટ વાઇઝ સૌથી પહેલાં નજર કરી લઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે SIPનો ઇન્ફ્લો નજર કરી લઈએ. SIPનો ઇન્ફ્લો આપણે નજર કરીશું તો અહીંયાથી આપણને જે 26,688 કરોડ આંકડો જે હતો એની સામે તમે જો પહેલાં હતો 26,632 કરોડ, એ વધીને તમારો 26,688 કરોડ આવ્યો. એટલે કે એટલું કોઈ ખાસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નથી જોવા મળ્યું. તમે જોશો તો માત્ર તમને અહીંયાથી 51 લાખ તમને અહીંથી વધારો જોવા મળ્યો છે, એટલું કોઈ ખાસ અહીંથી જોવા નથી મળ્યું. બીજું તમે નજર કરો નેટ ઇક્વિટી ઇન્ફ્લો. તો નેટ ઇક્વિટી ઇન્ફ્લો તમારું જે છે એ તમને અહીંથી જે ઓલમોસ્ટ જે 18,994 કરોડ હતું એ અહીંયાથી એની સામે તમારે આવ્યું છે 24,253 કરોડ નેટ ઇક્વિટી ઇન્ફ્લો. એટલે ત્યાં ઘટાડો જોવા. પહેલાં ટોટલ AUM નજર કરો 70 લાખ કરોડ હતું, જે વધીને 72 લાખ કરોડ તમને જોવા મળ્યું છે. AUM 2 લાખ કરોડ વધ્યું છે. SIP વધી છે, પરંતુ તમે
તમે નેક્સ્ટ તમે જેમ મેં વાત કરી કે નેટ ઇક્વિટી ઇન્ફ્લો, આવો નેક્સ્ટ તમે નજર કરો સ્લાઇડ. નેક્સ્ટ તમે નજર કરશો તો ત્યાં પણ તમને અહીંયાથી જે આપણે ડેટા તમે નજર કરો, ખાસ કરીને લાર્જ કેપ ફંડ ઇન્ફ્લો નજર કરો, તેમાં 2671 કરોડ હતું, જે ઘટીને 1250 કરોડ, એટલે કે લાર્જ કેપમાં તમે જુઓ તો ઓલમોસ્ટ તમને અહીંથી અડધું થઈ ગયું છે. અને એ જ કારણથી આપણે જો મિડ કેપ સ્મોલ કેપ વધી રહ્યા છે, પરંતુ તમારા લાર્જ કેપ નથી વધી રહ્યા. પરંતુ મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપમાં આવો ક્વેશ્ચન થાય કે શું એસઆઈપી એમાં વધી છે, પરંતુ એમાં પણ ઇન્ફ્લો ઘટ્યો છે. આવો નજર કરીએ નેક્સ્ટ તમે નેક્સ્ટ નજર કરો તો ત્યાં તમે જોશો તો તમારા માટે સ્મોલ કેપ ફંડ કે એનો ઇન્ફ્લો 3999 એટલે ઓલમોસ્ટ 4000 કરોડ હતો, એ ઘટીને 3214 કરોડ. એટલે અહીંયા પણ તમે જોશો તો ઇન્ફ્લો ઘટ્યો છે, જે તમારે લાસ્ટ ટાઈમ જે આવ્યો હતો એપ્રિલ મહિનામાં એના કમ્પેરમાં તમને અહીંયાથી ઓછા આવે છે. નેક્સ્ટ નજર કરી આવો તો સ્મોલ કેપ જોયું, લાર્જ કેપ જોયું, એમાં પણ ઘટાડો જોવા મળે. મિડ કેપ ફંડ તમે જુઓ તેમાં 3313 કરોડ હતો, એ ઘટીને 2808 કરોડ. એટલે અહીંયા પણ આપણે જોયું કે ઓલમોસ્ટ 15% ઘટાડો આપણને અહીંથી જોવા મળ્યો છે મિડ કેપ ઇન્ફ્લોમાં. પરંતુ સૌથી વધારે આપણે જોયું તે તમારા માટે લાર્જ કેપ જે હતો ફંડ કે જેમાં ઘટાડો જોવા મળે છે. ELSS ફંડ તમે જુઓ તેનો ઇન્ફ્લો 372 કરોડ હતો, એ વધીને 678 કરોડ. એટલે કે ELS એટલે કે ઇક્વિટી લિંક સેવિંગ સ્કીમ જે હોય છે કે જેમાં ટેક્સ પર્પઝથી લોકો અહીંથી કરાવતા હોય છે, એમાં અહીંયાથી ફ્લો વધ્યો છે, લોકો એમાં ઇન્ટરેસ્ટ અહીંયાથી વધારે ધરાવે છે. બીજું નેક્સ્ટ તમે નજર કરો, ELSSની વાત થઈ. NFO એટલે કે ન્યૂ ફંડ ઓફર, કે જેવી રીતે આપણે નોર્મલ માર્કેટમાં આપણે IPO હોય છે એ રીતે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં NFO હોય છે, એનો ઇન્ફ્લો તમે જોશો તો એ 350 કરોડ હતો, કે જે વધીને અહીંયાથી આપણને વધારો જોવા મળે છે 248 કરોડ. એટલે કે અહીંયા સારો આપણને વધારો જોવા મળે છે. બીજું ETF ઇન્ફ્લો તમે નજર કરો, ETF ઇન્ફ્લો તમારે જે 19056 કરોડ હતો, એ ઘટીને અહીંયાથી 4086 કરોડ. એટલે કે અહીંયા સૌથી વધારે મોટો ઘટાડો જોવા મળે છે ETF ઇન્ફ્લો. કારણ કે આપણે જોતા હોય તો આ ઇવન એક ફંડ એવો છે કે જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ લોકોનો વધારે હોય છે, પરંતુ જેમ વાત કરી કે ઓવરઓલ જે નેટ ઇક્વિટી ઇન્ફ્લો ઘટ્યો છે એના કારણે આપણને આ બધા જે આંકડા છે એ ઘટાડા સાથે જોવા મળી રહ્યા છે. અને નેક્સ્ટ તમે નજર કરો ગોલ્ડ ETF, એમાં સૌથી વધારે તમને વધારે જોવા મળે. અહીંયાથી સતત 55મો મહિનો એવો છે કે આ ફંડ છે કે જેમાં ગ્રોથ જોવા મળી રહ્યો છે. 5.82 કરોડના આઉટફ્લો હતો, એટલે કે લાસ્ટ ટાઈમ આઉટફ્લો, કારણ કે સોનાનો ભાવ આપણે જો 1 લાખ પહોંચે હતા ત્યારે આઉટફ્લો લોકોએ કર્યો હતો. એની સામે તમે જુઓ તો લોકોએ 292 કરોડનો ઇન્ફ્લો કર્યો છે. એટલે કે ત્યાંથી જે ભાવ ઘટીને નીચે આવે હતા એમાં લોકોએ ખરીદીની અહીંથી ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ, અને એ જ કારણથી આપણને એક ઇન્ફ્લો મે મહિનામાં આપણને અહીંથી જોવા મળે છે. એટલે કે ઓવરઓલ આપણને જે ડેટા પરથી એ આપણને તારણ આવી રહ્યું છે કે અત્યારે આપણને જે મે મહિનામાં કે જે માર્કેટ જે આપણે વધ્યું, મ્યુચ્યુઅલ ફંડે ખરીદી 100% નો ડાઉટ કરી જશે, પરંતુ જે રીતે એપ્રિલમાં કરી હતી એના કમ્પેરમાં મે મહિનામાં થોડીક ઓછી ઇક્વિટીમાં કરી છે. એના કમ્પેરમાં તેઓ ડેપ્ટમાં ગયા છે. બીજું જેમ આપણે જોઈએ ઇક્વિટી લિંક સેવિંગ સ્કીમ એટલે કે જે ટેક્સ સેવિંગ પર્પઝ હોય છે એમાં તેઓએ ખરીદી કરી છે. અને મેઇનલી તેઓએ ગોલ્ડ ETF એટલે કે સોના તરફ તેઓ અહીંયાથી વધારે અહીંયાથી ભારણ મૂક્યું છે, અને જે આપણને અહીંયાથી ડેટા પરથી સામે આવ્યું છે. એટલે ઓવરઓલ આપણે આ વાત થઈ MP તરફથી જે ડેટા આપવામાં આવ્યો હતો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીનો મે મહિનાનો. ODS ઓકે, સો મે મહિનાના આંકડાઓ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ જોવા મળી રહ્યા છે. આવો આગળ વધીએ, અને હવે આપણા સૌ કોઈની નજર હોવી જોઈએ જ્યારે માર્કેટ્સ વોલેટાઇલ છે, બંને તરફના સ્વિંગ્સ તમને અહીંયાથી ખાસ જોવા મળી રહ્યા છે. કોઈ ડેટા પોઈન્ટની ક્લેરિટી નથી. બસ ડેઇલી ચાર્ટ્સ પર તમે જુઓ તો દરરોજ લો બનાવે છે માર્કેટ્સ, ત્યાંથી ખરીદદારી બતાવી રહ્યા છે. સેક્ટર્સનું રોટેશન કઈ રીતે થઈ રહ્યું છે? આઈટી બેસ્ટ પરફોર્મર આજે સાબિત થયો છે. નિફ્ટી આઈટીમાં 0.5% સરસ ખરીદદારી તમને જોવા મળી રહી છે. ત્યારબાદ મીડિયા આજે દિવસની શરૂઆતમાં જ અમે હાઇલાઇટ કર્યું હતું, ઇનફેક્ટ ગઈકાલે પણ, એટલે કે સવારે જ તમને કહ્યું હતું કે 2 દિવસથી નિફ્ટી મીડિયાની અંદર ખરીદદારી આવી રહી છે. ગઈકાલે પણ હતી, આજે પણ તમને જોવા મળી રહી છે. તો નિફ્ટી આઈટી પછી નિફ્ટી મીડિયા, જ્યાં પણ ખરીદદારી સારી છે. ડિફેન્સમાં આજે જે સવારે સમાચારો હતા તે બધાને કારણે ફરી એકવાર ફ્લેવર આવી ગઈ છે, બાઇંગ આવી ગયું છે. આ સિવાય કોમોડિટીઝ છે, ફાર્મા છે, એનર્જી છે, આ બધાની અંદર સારી ખરીદદારી. દિવસની શરૂઆતમાં બેંક્સ ફાઇનાન્સ સાથે જોડાયેલા સ્ટોક્સમાં વેચવાલી હતી. અત્યારે જોવા મળે છે કે સરકારી બેંક્સ છે જે 0.5% આસપાસ વેચવાલી છે, પણ સૌથી વધુ દબાણ જો કોઈ જગ્યા હોય તો તે નિફ્ટી રિયલ્ટી છે. 1.25% વેચવાલી તમને નિફ્ટી રિયલ્ટીમાં જોવા મળી રહી છે, જે એવું બતાવે છે કે ડેફિનેટલી વ્યાજદરોના અનાઉન્સમેન્ટ્સ બાદ અહીંયા પ્રોફિટ બુકિંગ શરૂ થયું છે, અને તે હજુ પણ યથાવત. ફિન નિફ્ટીમાં પ્રોફિટ બુકિંગ છે જ, પ્રાઇવેટ બેંક્સમાં પણ છે જ. એટલે બેંક નિફ્ટી અત્યારે વર્સ્ટ લાર્જ જે કહેવાય કે મેજર જે આપણા ઇન્ડાઇસીસ છે તેમાંથી વર્સ્ટ પરફોર્મિંગ ઇન્ડેક્સ અત્યારે ફિલહાલ બેંક્સ સાબિત થઈ રહ્યા છે. કન્ઝમ્પશન, ઇન્ફ્રા, આ બધામાં થોડી વેચવાલી તો છે જ, પણ ઓવરઓલ મેં જેમ તમને કહ્યું તેમ બેંક્સ છે કે જે સૌથી વધારે વીકનેસ આજના દિવસે બતાવી રહ્યા છે. જો નિફ્ટી આઈટી આટલું સરસ પરફોર્મ કરે છે તો એક વખત જરા નિફ્ટી આઈટીના હું કોમ્પોનન્ટ્સ તમને કહું, કેમ કે આજે ઇન્ફોસિસ, TCS બધાની અંદર સરસ ખરીદદારી તમને જોવા મળેલી જ છે. તેમ છતાં પણ જો સ્ટોક સ્પેસિફિક આપણે ચર્ચા કરવી હોય તો ખાસ ઓરેકલ ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ આજે સૌથી સરસ મજબૂતી અહીંયા આવી છે. 3.25% આસપાસ, પરસિસ્ટન્ટ 0.5% આસપાસની મજબૂતી છે. એમ્ફેસિસ 0.5%
આસપાસની મજબૂતી છે. LTI માઇન્ડટ્રી સારી ખરીદદારી તમને જોવા મળી રહી છે અને ટેક મહિન્દ્રાની અંદર પણ સારી ખરીદદારી તમને જોવા મળી રહી છે. તો આઈડિયલ સ્ટેટમાં આ બધા જ ઓવરઓલ સારા મજબૂતી ધરાવનારા અને 10 કોમ્પોનન્ટ્સ છે આઈટીના કે જેની અંદર તમને ખરીદદારી જ જોવા મળી રહી છે. આવો એક ક્વિક બ્રેકનો પણ આવે સાથે સાથે સમય થઈ ગયો છે, તો નાનકડો વિરામ લઈ લઈશું અને વિરામ બાદ અમારી આ રજૂઆતને આગળ યથાવત રાખીશું. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. ભારતીય માર્કેટ્સ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ સોફાર લગભગ રેન્જમાં કોઈ ખાસ પરિવર્તન નથી અને ગઈકાલના ઇન્ફેક્ટ ક્લોઝના ભાવને નજીક મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપમાં તમે નજર કરો તો પર્ટિક્યુલરલી મિડ કેપ ગઈકાલના ભાવથી થોડું નીચે છે, બંધ ભાવથી આઈ રિપીટ નીચે છે, પણ સ્મોલ કેપની અંદર તમે જોશો કે થોડું એવું તમને એક્શન લીલા નિશાનનું હજુ પણ છે, પણ બહુ મામૂલી. હવે માર્કેટ્સ બહુ કન્ફ્યુઝિંગ છે. આવી સ્થિતિમાં વધુ ચર્ચા કરીએ. આપણી સાથે परम निवेश ना इंद्रजीत सिंह जुड़ा रहा है. सर जी बहुत बहुत स्वागत आपका और सबसे पहले तो ग्रीटिंग्स, गुड आफ्टरनून कहना चाहेंगे. फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहला सवाल सर इंडेक्स पे ही रहेगा. 2 दिन से तो इतने आलस में निकाल रहे हैं हम. आप रेंज देख लीजिए, इतनी बंधी हुई रेंज रहती है कि बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है. लेकिन हाँ, कमेंट्री ज़रूर जानना चाहेंगे. बैंक निफ्टी रिकॉर्ड बनाकर थोड़ा ठंडा हुआ है, जबकि निफ्टी जो है वो अपने अपर एंड पे जो ये 25,200 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है. सर गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. और जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं सबको गुड आफ्टरनून. सबसे पहले तो निफ्टी एक्चुअली एक रूल रहता है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग इन एडवांस, जो भी न्यूज आने वाली होती है. तो अभी जो आरबीआई ने एक बहुत वंस इन अ डेकेड पॉलिसी दी है, जो रेट कट किया है 0.50 बेसिस पॉइंट से, और जो रेपो रेट कम किया, जो सीआरआर कम किया है उन्होंने 1% से, तो इसका जो इफेक्ट है ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट्स पे देखने को मिलना है. तो ये इन चीजों के कारण मार्केट ऑलरेडी बहुत हाइक पर आ चुका है. और अगर अपन बात करें पिछले 2 महीने से, तो पिछले 2 महीने से मार्केट ऑलमोस्ट 22,000 का लेवल टच करके 25,000 पे आ चुका है. पर अभी जहां पर मार्केट स्टैंड कर रहा है, यहां पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए. इवेंचुअली मार्केट का प्रोस्पेक्ट काफी स्ट्रांग है. प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से मार्केट अपसाइड टिक करेगा, लेकिन हाल फिलहाल के प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए निफ्टी में. बैंक निफ्टी के साथ भी ऐसा ही हुआ. बैंक निफ्टी पिछले कुछ टाइम से स्ट्रगल जरूर कर रहा था, लेकिन जैसे ही आरबीआई ने जो पॉलिसी निकाली है उसके बाद सेंटीमेंट काफी बूस्ट हो गया, और जो 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन फ्यूचर आने वाली है, तो मुझे लगता है वो मार्केट को काफी ऊपर ले जाने की काबिलियत रखती है. जी बिल्कुल. तो ओवरऑल આપણે અહીંયાથી વાત થઈ માર્કેટ લઈને કે જ્યાં તમારે ખાસ કે અહીંયાથી ફોકસ હોવું જોઈએ. જેમ સર અહીંયાથી વાત કરી કે નિફ્ટીમાં આપણને થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ જોવા મળી શકે, પરંતુ બેંક નિફ્ટીમાં હજુ પણ આપણને મજબૂતી અહીંયાથી જોવા મળી શકે છે. અને જેમ સરે વાત કરી આપણને આરબીઆઈ રેટ અને એટલે કે રેપો રેટ અને સાથે સાથે આપણને અહીંયાથી જે કેશ રિઝર્વ રેશિયોમાં જે ઘટાડો કર્યો એ બધી વસ્તુ આપણે અહીંયાથી હાઇલાઇટ होवी જોઈએ. पर सर मैं आपके पास बैंक निफ्टी थोड़ा और स्पेसिफिक जानना चाहूँगा, क्योंकि हम देखें तो पीएसयू बैंक जो अच्छा खासा हमें यहाँ से सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन जो प्राइवेट बैंक देखें तो उसमें से एक तो एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एयू बैंक जो अच्छे खासा सपोर्ट 2 दिन से तो दे रहे, परंतु हम वो फोकस करें खास करके एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, तो वो दोनों का पार्टिसिपेशन अभी नहीं आया है. अगर वो दोनों पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करें तो बैंक निफ्टी आपको लगता है कि 58,000 के लेवल भी दिखाने के लिए सक्षम है सर? ऑब्वियसली अगर 57,100 का लेवल बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो 58,000 बहुत जल्दी टच कर देगा. लेकिन मैं कुछ इश्यूज अभी देख पा रहा हूं, जैसे कि एक तो लोअर सेविंग रेट्स जो प्राइवेट बैंक को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, वो लोअर सेविंग रेट, और अभी मैं कुछ समय से देख रहा हूं कि एनपीएस वापस से इंक्रीज हो रहे हैं. तो ये 2 इशू चल रहे हैं. अगर ये 2 इशू सॉल्व हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी 58,000 को भी इसी साल क्रॉस करके और काफी ऊपर जाएगा. पर अभी पीएसयू बैंक ज्यादा स्ट्रांग है रेदर देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. बिल्कुल, और यही प्रॉब्लम हो रही है. एक कंपोनेंट चलता है तो दूसरा नहीं चलता है. सर अब पहले तो स्टॉक स्पेसिफिक आपका रिकमेंडेशन जान लेते हैं. आपकी तरफ से आज कौन सी स्ट्रेटेजी रहेगी इंद्रजीत सिंह? मेरी तरफ से मैं एक स्टॉक देना चाहूंगा अपोलो हॉस्पिटल्स का, जिसको कि मैं बाय करने की सलाह दूंगा 6800 से 6830 के बीच में थोड़ा सा नीचे आ जाए, और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम 6675 का, और टारगेट रहेंगे 7125 और 7250 का. और
इसका बहुत ही अच्छा रीजन भी है मेरे पास एक्चुअली। कंपनी 8,000 करोड़ के एक्सपेंशन प्लान कर रही है और 8,000 करोड़ का जो एक्सपेंशन प्लान है इसमें से मेजरली जो फंडिंग है वो अपने प्रॉफिट में से ही यूज करने वाली है और अगले 2 साल के अंदर 2,000 बेड इनके फंक्शनल होने वाले हैं। तो जैसे ये 2,000 बेड फंक्शनल होंगे और ये सारे बेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, तो ऑब्वियसली ये स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से अपटिक करेगा। और हेल्थ सेक्टर एक ऐसी चीज है जो हमने डाउनसाइड मूवमेंट्स बहुत कम देखे हैं। तो पहला रिकमेंडेशन मेरा रहेगा अपोलो हॉस्पिटल्स का। જી બિલકુલ, તો આપણા ઇન્દ્રજીત સર તરફથી અહીંયાથી અપોલો હોસ્પિટલ કે જ્યાં ખરીદી કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે, જ્યાં તમારું ફોકસ રહેશે. નજર કરો માર્કેટ ઉપર તો નિફ્ટી 25,100નું લેવલ અહીંયાથી આપણને તૂટતું જોવા મળી રહ્યું છે. 25,095ના લેવલ આવી રહ્યા છે. સામે તમે નજર કરો તો સેન્સેક્સ જ્યારે વીકલી એક્સપાયરીના દિવસે અહીંયા પૂરા પ્રયત્નો જોવા મળ્યા 82,500નું લેવલ આપણને સાચવવાના, પરંતુ ત્યાં પણ તમે જુઓ તો આપણને નીચલા સ્તર તરફ આપણને હાલ અહીંથી ક્લોઝિંગ જોવા મળે એવી શક્યતા જોવા મળી રહી છે. બેંક નિફ્ટી 56,600ની નીચે ગયું, 56,570 લો બનાવ્યા, પરંતુ 56,600નું લેવલ છે જે જાળવી રાખવાના પ્રયત્નો જોવા મળ્યા. આપણે જોયું તો છેલ્લા ઘણા દિવસથી મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ એ વધારે આપણને સારી એવી તેજીમાં જોવા મળ્યું હતું, પરંતુ મિડ કેપ જુઓ તો ત્યાં પણ આજે 0.5% ખરીદી બાદ અત્યારે આપણને લાલ નિશાનમાં જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યારે સ્મોલ કેપ નજર કરશો તો એ પણ 0.5% મજબૂતી બાદ ઓલમોસ્ટ फ्लैट આપણને कारोबार જોવા મળી રહ્યો છે. इंद्रजीत सर, मैं आपके पास मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों चीज़ लेके आऊँगा, क्योंकि हम देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा अभी रन हो रहे हैं. और हम मिड कैप स्मॉल कैप देखें तो डेली ओपनिंग हमें ग्रीन निशान के साथ ही हो रहे हैं और देखें तो क्लोजिंग भी अच्छी खासी हमें ग्रीन निशान में ही देखने को मिले. आज थोड़े उपले स्तर से वो हुए प्रॉफिट बुकिंग, परंतु जितना निफ्टी और बैंक निफ्टी दिख रहे हैं हम प्रॉफिट बुकिंग में, इतना मिड कैप स्मॉल कैप नहीं हुआ. अभी भी वहाँ कॉन्फिडेंस थोड़ा दिख रहा है, तो आगे लगता है कि ये अभी भी कॉन्फिडेंस आगे यथावत रहेगा सर? जी, कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। एक्चुअली जो मैं बता रहा हूँ, आरबीआई ने जो पॉलिसी अभी लॉन्च की है, वंस इन अ डेकेड पॉलिसी है और इसका प्रॉफिट हर एक सेगमेंट पे जाना है, चाहे वो एक बड़ा सेगमेंट है चाहे वो एक छोटा सेगमेंट है। पर अभी बात सिर्फ इतनी सी है कि स्मॉल कैप और मिड कैप, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और इनके वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच हो चुके हैं। तो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, एक थोड़ा सा वैल्यूएशन सही आ जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, उसके बाद अगर हम एक फ्रेश एंट्री अपसाइड के लिए लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप हमेशा ज्यादा रिस्पॉन्स करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी से। तो अगर ऊपर की साइड जा रहा है, ज्यादा कर रहा है, तो उतना ही फॉल भी हमें इसमें देखने को मिल सकता है। इसलिए कुछ समय सतर्क रहना चाहिए, अभी कंसोलिडेशन जोन को क्लियर हो जाने देना चाहिए और अभी सारी न्यूज पॉजिटिव है। और एक इंडियन मार्केट के लिए एक चीज है कि नो न्यूज इज ऑल्सो गुड न्यूज। अभी फ्यूचर में कोई न्यूज जब तक नहीं आती तब तक मार्केट्स अपटिक ही करेंगे और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि यूएस चाइना की डील हो रही है, इंडिया इंग्लैंड की डील हो रही है, इंडिया यूएस की डील हो रही है, तो उन जगहों पर भी इनको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। तो यस, इनका फ्यूचर अच्छा है, पर कुछ समय हमें इसको सतर्कता के साथ रखना चाहिए, उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। और मैं मानता हूं कि अब भी थोड़ा सा 300-400 पॉइंट का मूवमेंट छोड़ के अगर स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी मिड कैप 60,000 क्रॉस करता है तो ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ निकल जाएगा ये। બિલકુલ. તો નજર હવે આપણે અહીંયાથી ખાસ રાખવાની રહેશે. સર, आप फर्स्ट पिक आपने अपोलो दिया है, तो क्या और कोई भी रिकमेंडेशन है आज? बिल्कुल, एक रिकमेंडेशन और देना चाहूंगा मैं, अल्ट्राटेक सीमेंट। जी, रिसेंटली अभी मॉर्गन स्टैनले ने अल्ट्राटेक सीमेंट को री रेटिंग पे किया है और काफी अच्छे इसका अगर हम प्रोस्पेक्ट देखें तो बहुत अच्छा है, पूरे इंडिया में इसके फुटप्रिंट्स हैं और सेकेंडली अभी ये रिटेल पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और इनकी जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि बाकी कंपनियों के जैसे रैपिड एक्सपेंशन की जगह पर ये जो इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज है उसको यूटिलाइज करके और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करके अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल का मेरा बाय रहेगा 11,300 पे, थोड़ा सा नीचे आने का वेट करेंगे, 11,300 पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस एक छोटा सा रहेगा 11,050 का और टारगेट रहेंगे इसके 11,800 और 12,300। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैंने शायद कुछ मिस इंटरप्रेट किया, अल्ट्राटेक सीमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्राटेक सीमेंट, दो अलग अलग स्टॉक्स आज के रिकमेंडेशंस फिर से एक बार हम स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर देते हैं। इवन सर, अपोलो हॉस्पिटल तो अब गुजरात में भी यहाँ पे हमारे गांधीनगर के पास भी है, तो इनका तो जो आप कह रहे थे शुरुआत में लॉजिक, वो तो डेफिनेटली इन लाइन जा रहा है और ऑलमोस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग इनके प्लान्स है। बेसिकली इनके 3-4 साल में 4,300 बेड ऐड करने के प्लान है और सबसे मेन बात, ये पूरा पैसा ये अपनी प्रॉफिट से और अपने रेवेन्यू से लेके
लेके आ रहे हैं, लोन नहीं लेंगे उस चीज के लिए। Exactly. तो इस चीज से लगता है कि काफी कंपनी के फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है। और मैं तो ये कह रहा था कि अभी गुजरात में सिर्फ एक ही शहर में है, तो उनको दूसरे सिटीज़ जो टैप इन वगैरह भी करने हैं, उनके लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो भी उनके पास मार्केट ओपन है। तो जैसे जैसे उन्होंने नॉर्थ से धीरे धीरे अपना कारोबार एक्सपैंड करने का एक प्रोजेक्ट लिया है, उसके तहत भी ये एक परफेक्ट प्लेसमेंट है। सर, स्टॉक स्पेसिफिक आने से पहले मैं जरा सेक्टोरियल रिव्यू लेना चाहूँगा आपसे। निफ्टी आईटी के सेक्टर इंडेक्स को आप एक बार लेके आइए स्क्रीन पर। बहुत अच्छी ब्रेकआउट देखने मिल रही है, नंबर वन। दूसरा, जब निफ्टी को ज़रूरत है, जैसे 2 दिन से मान लीजिए बैंक निफ्टी ठंडा पड़ गया, तो आईटी जो है वो यहाँ से सपोर्ट देता है, जो हिस्टोरिकली होता ही आया है। लेकिन अब जब फिर से एक बार एनर्जी आई है, तो क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, ये भी हमें समझना पड़ेगा सर। देखिए, ये जो अभी मैं मूवमेंट देख रहा हूँ, ये रीजन है इंडो यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स का। अभी अगर हम डायरेक्टली देखें तो डायरेक्टली इस चीज का इफेक्ट आईटी इंडस्ट्री पर नहीं पड़ेगा, पर जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ये जितने भी बेहेमौत है जो अमेरिका में है, इस चीज से उनकी टेंशन ईज होंगी। जैसे जैसे इन कंपनीज की टेंशन ईज होती है, तो हमने एक ट्रेंड देखा है कि ये टेक्नोलॉजी में काफी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक रीजन बन सकता है जिसके कारण आईटी वापस से ग्रोथ करेगा। और सेकेंडली, जितनी भी अमेरिकन नेशंस हैं, वेस्टर्न नेशंस हैं, वो चाइना +1 पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। वो अपना जितना भी रिलायंस चाइना पे था उसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं। और ऑब्वियसली इंडिया एक पावर हाउस है आईटी इंडस्ट्री का, तो इस चीज का बेनिफिट श्योरली इंडिया को मिलेगा। और जैसे आप बात कर रहे थे कि सेक्टोरल रोटेशन हमारे इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा चलता है, कोई ना कोई एक सेक्टर हमेशा खड़ा रहता है मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। तो अभी की कंडीशन में आईटी ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग है। जैसे जैसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, अल्फा और ये जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं, ये टेक में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और अगर हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो एक रीसेंट स्विंग 38,200 या 38,300 का आईटी का इंडेक्स ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इसे ब्रेक करता है तो इधर से 40,000 टच करना भी इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन नियर फ्यूचर। तो इसके ऊपर हम फोकस जरूर रखेंगे। आईटी के कंपोनेंट्स मुझे डिस्कस करने हैं सर आपके साथ, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, एक नानकड़ा विरामનો સમય થયો છે। બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ આ રજૂઆતને આગળ યથાવત રાખીએ। બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે દર્શક મિત્રો। ભારતીય માર્કેટ્સ પર નજર કરી લઈએ એક વખત। અમેઝિંગ એક્શન તમે જુઓ, અચાનક જ એક બાઉન્સ આવ્યો છે 25,100 ને ઉપર આગળ વધવાની વાત। હવે આ તો પેલું છેલ્લી પોણી કલાકનું જે સેટલમેન્ટની ગેમ છે તેના ભાગ સ્વરૂપે ખરીદદારી આવી છે, એટલે એક્શન સારું છે। જોઈએ ફોલોઅપ કઈ રીતનું થઈ રહ્યું છે, બીકોઝ જુઓ પ્રોબ્લેમ શું છે, પ્રોબ્લેમ એ છે કે 25,103નો તમારો ક્લોઝ હતો ગઈકાલનો। હવે આજે જો નિફ્ટીને લીલા નિશાનમાં રાખવું હોય તો ગમે તેમ કરીને 25,103નું સેટલમેન્ટને ઉપર તો જવું જ પડે, બરાબર છે। એટલે આ સ્થિતિમાં કોશિશ થઈ રહી છે ઇન્ડેક્સની અહીંયા। જોઈએ હવે આગે દેખતે હૈ હોતા હૈ ક્યા। स्टॉक स्पेसिफिक આપણે कॉम्पोनेंट्स जो आईटी ना बात करी रहा था। इंदर सर, आपके पास आते हैं। अब आईटी के कॉम्पोनेंट्स डिस्कस करने हैं जिसमें परसिस्टेंट एक ज़रूर ध्यान खींच रहा है, लेकिन अगर मैं आईटी के वीकली गेनर्स देखूं तो उसमें भी OFSS और परसिस्टेंट दोनों कंसिस्टेंट हैं। इवन कोफोर्ज भी अगर आप देखिए तो स्प्लिट के बाद, मतलब कि मिड कैप आईटी ध्यान खींच रहा है यहाँ पर। आप कौन से कॉम्पोनेंट पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी आईटी में? आईटी में देखिए, एक तो कोफोर्ज मुझे बहुत अच्छा लगता है। रिसेंटली अगर हम अभी की बात करें तो मॉर्गन स्टैनले ने इस पे री रेटिंग की और एक काफी अच्छा प्राइस बैंड दिया है। इधर से करीब 2080 की प्राइसिंग मॉर्गन स्टैनले ने कोफोर्ज को प्रोवाइड की है। तो कोफोर्ज काफी अच्छा शेयर है जिसको हम देख सकते हैं। हमने एक बात की OFSS के बारे में। OFSS बेसिकली एक फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर कंपनी है और जिस तरह से ईजिंग हुई है, ऑब्वियसली कस्टमर बेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड होने वाला है। तो जैसे जैसे कस्टमर बेस एक्सपेंड होगा उतनी ज्यादा आईटी फाइनेंस कंपनीज को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और OFSS उन चीजों में बहुत लीड कर रहा है। तो OFSS और कोफोर्ज ये दोनों मेरे स्पेशल पिक रहेंगे अभी के। इसके बाद अगर हम बात करें
तो TCS, इन्फोसिस ये सारे स्ट्रांग है क्योंकि ये सारे अपने आप में AI को इन्वॉल्व कर चुके हैं और फ्यूचर AI का है, तो दे आर AI रेडी। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि चाइना +1 की पॉलिसी पे सारी कंट्रीज वर्क कर रही हैं, तो इंडिया ऑलरेडी एक पावर हाउस है। तो मैं कहता हूं किसी भी IT सेक्टर जिसका फाइनेंशियल स्ट्रांग है और एक ऑर्डर बुक अच्छा है, वो हमें अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। पर मैं पर्सनली कोफोर्ज को अभी बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि रिसेंटली उस पर री रेटिंग हमने देखी है। જી બિલકુલ, તો ઓવરઓલ અહીંથી આઈટી સેક્ટરમાં આપણે વાત કરી કે જ્યાં સરને કોફોર્સ છે કે જે સૌથી વધારે પસંદ આવી રહ્યો છે, જ્યાં આપણે ખાસ કરીને ફોકસ કરીશું. સરે વાત કરી મોર્ગન સ્ટેનલીનો રિપોર્ટ આપણને અહીં આવ્યો, સાથે આપણે જોયું તો જેપી મોર્ગનનો પણ આપણને કોફોર્સ ઉપર રિપોર્ટ આપણને આવ્યો હતો, જ્યાં ઓવરવેટના રેટિંગ આપણને જેપી મોર્ગન તરફથી પણ આપવામાં આવ્યા હતા. એમનું પણ અહીંયાથી 2080નો ટાર્ગેટ અહીંયાથી આપવામાં આવ્યું હતું, જે આપણે ખાસ કરીને અહીંથી હાઇલાઇટ કરવું જોઈએ. બીજું આપણે જોઈએ તો આજે ઇન્ડસ્ટ્રી વાઇઝ આપણે જોઈએ તો इंद्रजीत सर मैं आपके पास ऑटो इंडस्ट्री लेके आऊँगा क्योंकि लास्ट 1-2 वीक्स हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है. हम आईटी देखें, फार्मा, वो सब सेक्टर जब परफॉर्म करते हैं तब एक साथ हर एक शेयर हम देखें तो साथ में चलते. लेकिन ऑटो के साथ पिछले 1 महीने से क्या हो रहा है कि अगर 50% स्टॉक ग्रीन है तो 50% रेड है. और उसमें से स्पेसिफिक हाईलाइट करें तो एक बजाज ऑटो, मारुति, जो लास्ट 1 महीने से इतना परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला जितना महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, उनमें कमबैक देखने को मिला. पर आज की मैं बात करूँ स्पेसिफिक तो टाटा मोटर्स वो हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि आज 2 ब्रोकरेज हाउस आए और 2 ब्रोकरेज हाउस देखे तो एक ने अंडर परफॉर्म रेटिंग किया और दूसरे ने न्यूट्रल रेटिंग किया. उन्होंने स्पेसिफिक जो उनका जो JLR सेगमेंट है उसको हाईलाइट करके उन्होंने ये जो रेटिंग है वो थोड़ा डाउनग्रेड किया है. तो आपका ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री पे क्या व्यू है और टाटा मोटर्स, वो दोनों पे सर बात करते हैं. मैं इंडिया में अगर ऑटो इंडस्ट्री की बात करूं तो ऑटो इंडस्ट्री बहुत अच्छा है. जैसे सबसे पहले हमने मारुति की बात करी तो मारुति आज तक छोटी गाड़ियों का एक तरह से देखा जाए तो किंग था, पर इवेंचुअली पिछले 3-4 साल में छोटी गाड़ियां बिकना ही बहुत कम हो गई, जिसके कारण मारुति को अफेक्ट पड़ा था. पर मारुति ने वहां पर एक चेंज किया और उसने इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना चालू कर दिया. तो 43% इंडियन कार्स एक्सपोर्ट मारुति ने की. अभी हम टाटा मोटर्स पे आते हैं. सबसे पहले तो ऑटो सेक्टर में जो एक इशू आया कि अभी चाइना ने जो रियर मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट बैन किया था उसके कारण थोड़ी सी टेंशन्स जनरेट हुई थी, पर अभी वापस से वो सप्लाई चालू हो गया है. और टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स 2027 तक 40% मार्केट शेयर ऑब्जर्व करना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का. और रही बात जैगुआर लैंड रोवर की, तो जैगुआर लैंड रोवर पिछले कुछ टाइम से ही टेंशन में है. बेसिकली यूरोप और चाइना में जैगुआर लैंड रोवर्स की सेल ठीक ठाक रही थी, पर अमेरिका की बात करें तो वहां पर सेल्स हमारी काफी गिर गई थी. और अभी बेनिफिट हमें मिलेगा जैसे इंडिया और इंग्लैंड का एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उधर से जैगुआर लैंड रोवर को इवेंचुअली बेनिफिट मिलने वाला है. और जब इंग्लैंड और यूएसए का ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो जैगुआर लैंड रोवर अमेरिकन मार्केट्स में भी सस्ती देखने को मिलेगी और जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली इनके नंबर्स पे पड़ेगा. तो टाटा मोटर्स के साथ एक और चीज अच्छी होने वाली है कि टाटा मोटर्स अभी स्प्लिट होने की बात चल रही है, कंज्यूमर व्हीकल और प्राइवेट व्हीकल. तो जिस टाइम ये स्प्लिट हो जाएगा उस टाइम पे मुझे उम्मीद है कि जो मैनेजमेंट है वो इंडिविजुअल सेगमेंट पे बहुत अच्छे से फोकस करते हुए ये स्टॉक को फ्यूचर में बहुत आगे तक लेके जाने वाला है. और पिछले 3 साल से कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स में आ चुकी है, मैनीफोल्ड प्रॉफिट्स इन्होंने जनरेट किए हैं. तो ये टाटा मोटर इज अ बाय, बट थोड़ा सा समय ज्यादा ये ले सकता है क्योंकि जो रीसेंट प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं. और अगर रीसेंट की बात करें तो 550 के लो से वापस से टाटा मोटर 700 के करीब का करेक्शन ले चुका है. 1200 का करीब इसका ऑल टाइम हाई था. अगर किसी के पास ये स्टॉक है तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको होल्ड करना चाहिए. और जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज आती है वो चीज बहुत अच्छी हो जाएगी. और अभी जो एक रीसेंट ब्रेकआउट है, अगर 735 को टाटा मोटर्स क्रॉस करता है तो ये 800-850 तक इजीली जा सकता है. ओके, सो रिव्यू यहाँ पर ये बन रहा है टाटा मोटर्स के लिए. ओके सर, आगे बढ़ते हैं. एक और सेक्टोरियल रिव्यू मैं आपसे लेना चाहूँगा और वो है निफ्टी एनर्जी. तो पहले तो आप सेक्टर को देख लीजिए, इंडेक्स को देख लीजिए, उसके बाद अगर कंपोनेंट्स को देखें तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो आर पावर बहुत ज़्यादा तेज़ी में है ये स्टॉक, बहुत ही लोग ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं. इसके बाद अडानी पावर है जिसमें आज तेज़ी देखने मिली. इवन GTND अगर मंथली या ईयरली बेसिस पर हम देखने जाएं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो इसके ऊपर भी हमें डिस्कस करना चाहिए. इंदर सर.
एनर्जी सेक्टर ऑब्वियसली इंडिया जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है तो एनर्जी की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ेगी। Yes. और जिस हिसाब से मोदी जी का एक टारगेट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा पुश एनर्जी सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी इन सारी चीजों पे ऑब्वियसली ग्रोथ का काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट होने वाला है। और जैसे आपने रिलायंस पावर की बात की, तो रिलायंस पावर आज की डेट में 70 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। 2018 के करीब इसमें एक नेगेटिव न्यूज आई थी कि इसका प्रॉफिट गिर गया था, तो गिर के 1 रुपए पे आ गया और 1 रुपए के बाद आज वापस 2018 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और अभी रिसेंटली इसने एक 65 के अराउंड का ब्रेकआउट दिया है। तो रिलायंस पावर ऑब्वियसली काफी स्ट्रांग है। और जब ये गिरा भी था तो उस टाइम भी अगर हम एक चीज देखते हैं कि रिलायंस पावर की जो बुक वैल्यू है वो 40 है, तो 40 से 35 की रेंज में ही गिरना चाहिए था। भली कंपनी लॉस कर रही थी पर इतना मेजर लॉस नहीं था। तो इवेंचुअली वो 2-3 सालों में चीजें वापस से रिफ्लेक्ट बैक हुई, मैनेजमेंट स्ट्रांग हुआ और आज रिलायंस पावर वापस से एक ब्रेकआउट करके 71 पर है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि विद इन 4 to 5 मंथ या विद इन अ ईयर ये 100 टच करने की कैपेबिलिटी रखता है। બિલકુલ તો ઓવરઓલ અહીંયાથી આપણે વાત થઈ એનર્જી સેક્ટર કે જ્યાં તમારે ખાસ કરીને ફોકસ હોવું જોઈએ। આવો નજર કરીએ કે આજે કેટલા બધા સ્ટોક છે કે જે આજે આપણને નવા રેકોર્ડ હાઈ બનતા જોવા મળી રહ્યા છે। ટોટલ નિફ્ટી 500માં જોઈએ તો 21 સ્ટોક આપણને જોવા મળી રહ્યા છે જે નવા રેકોર્ડ હાઈ બનાવી રહ્યા છે। ગઈકાલે પણ આપણે જોયું તો 24 સ્ટોક હતા જે નવા રેકોર્ડ હાઈ બનાવી રહ્યા, આજે પણ તમે જુઓ તો 21 સ્ટોક તમને નવા રેકોર્ડ હાઈ બનાવી રહ્યા છે। એક તો ઓલરેડી આપણે જસ્ટ વાત કરીએ આર પાવર 10% તેજી નવા રેકોર્ડ હાઈ બની રહ્યા છે। એફએલ ઇન્ડિયા અહીંયા પણ 4.5% તેજી જોવા મળી રહી છે। એરિસ લાઈફ સાયન્સ, રેમકો સિમેન્ટ, દાલમિયા ભારત તમે નજર કરો અહીંયા પણ 2172 નવા રેકોર્ડ હાઈ બન્યા છે। ફોર્ટિસ હેલ્થકેર, વેલ્સપન કોર્પોરેશન અહીંયા નવા રેકોર્ડ હાઈ। ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સવારે જ આપણે વાત કરી હતી કે ડિફેન્સ સ્ટોકમાં જે સમાચાર હતા જે બાદ સારી એવી તેજી જોવા મળી છે। બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ સતત તમે જુઓ છો અહીંયા નવા અહીંયા આપણને સારી એવી તેજી જોવા મળી રહી છે। મનપ્પુરમ ફાઇનાન્સ, ઓથમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, લોરસ લેબ, MCX એટલે કે ઘણા બધા સ્ટોક છે કે જ્યાં આપણને નવા રેકોર્ડ હાઈ બનતા જોવા મળી રહ્યા છે। इंद्रजीत सिंह मैं आपके पास रैमको सीमेंट लेके आऊँगा। ऑलरेडी आपने सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक सीमेंट आपने दिया है वो बाय रिकमेंडेशन में। रैमको सीमेंट देखे तो आज नए रिकॉर्ड हाई बना रहा है। लास्ट हम देखे दिसंबर महीने में 2023 में तो हमें 1058 का हाई बना था और वहाँ से हम रिजेक्शन आया था। फिर हम देखें 2024 दिसंबर में तो वहाँ पे 1060 का हाई बना था और वहाँ से रिजेक्शन आया। और आज हम देखें तो 1068 पे अभी स्टॉक है। मतलब वो जो 2 बार हमें लास्ट 2 साल में 1060 से जो रिजेक्शन आया था वो फाइनली आज ऊपर क्लोजिंग देने को लिए जा रहा है। तो आज का जो क्लोजिंग है वो आपको लगता है कि आगे और 20% अपसाइड दिखा सके सर? बिल्कुल सस्टेन करना चाहिए। एक्चुअली मॉर्गन स्टैनली ने जो पूरा कैपिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसी पे री रेटिंग की है। और अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि आज की डेट में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं इनमें काफी पुश आने वाला है। तो ये जितनी भी बड़ी कंपनियां ये डायरेक्ट सेल्स करती है गवर्नमेंट पे, ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे ये अवेलेबल है। तो इस बार जो मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है थोड़ा सा मुझे डिसीजिव दिख रहा है और उम्मीद करता हूं कि इस बार ये ब्रेकआउट निकल जाएगा, क्योंकि इस मॉर्गन स्टैनली में आपको एग्जैक्ट बता दूं 24% का अपटिक दिया है इस सेक्टर में। तो इस बार जब सेक्टर ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली ये उसके सबसे मेन कंपोनेंट्स हैं और सीमेंट किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस है। तो इस बार ये जो ब्रेकआउट कर रहा है मैं मानता हूं कि इस बार ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई के करीब जाने की काबिलियत रखता है। ઓકે સો इसके ऊपर फोकस हम जरूर रखेंगे। સિમેન્ટ કંપનીઓની આપણે વાત કરી છે। આવો દર્શક મિત્રો ધીરે ધીરે ક્લોઝિંગ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ। એક બ્રેકનો પણ સમય થઈ ગયો છે। નાનકડો વિરામ લઈએ અને વિરામ બાદ રજૂઆતને આગળ યથાવત રાખીએ। બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે। ભારતીય માર્કેટ્સ પર નજર કરો તમે લીલા નિશાનમાં રહેવાની પૂરી બેરલી કોશિશ નિફ્ટી કરી રહ્યો છે અત્યારે ફિલહાલ। બેંક નિફ્ટી પર નજર કરો તો ત્યાં પણ 56,600 એટલે ઓબ્વિયસલી ક્લોઝિંગ તો લાલ નિશાનમાં થશે તે વાત પાકી છે, પણ 56,500 પ્રોટેક્ટ કરી રહ્યા છે। આજે સવારે કદાચ આપણે આ લેવલની આપણે વાત પણ કરી હતી। વોલ્ટિલિટી ઇન્ડેક્સ કંટ્રોલ થઈને જઈ રહ્યો છે। સો ફર્ધર અને ફર્ધર જેમ જેમ વિક્સ કંટ્રોલ થતો જઈ રહ્યો છે, જે આઈડિયલી તો ભારતીય માર્કેટ્સ માટે સારી જ વાત છે। એનાથી કોઈ બહુ મોટા જીટર્સ હવે નથી તેવું આપણે સ્પષ્ટપણે સમજી જવું જોઈએ। કોઈ ચિંતા નથી બેઝિકલી, તે સંકેત હવે તમને અહીંયાથી ખાસ ઇન્ડિયા વિક્સનો ઘટાડો આપી રહ્યો છે। તો ક્લોઝિંગ એકંદરે ભલે મ્યુટેડ હોય પણ સારું છે એમ આપણે જરૂર માની શકીએ। સ્ટોક સ્પેસિફિક હજુ પણ આપણી પાસે થોડો સમય છે, તો મારે આજે ટોપ લૂઝર્સ જે છે તે બધા જ સમજવાના છે અને તેમાંથી એક કાउंटर सफायर फूड्स। अब इंद्रजीत सर आपके पास लेकर आना चाहूँगा सफायर फूड्स को। 328 से लेकर 317 317
रेंज बनी है, 3% डाउन है। QSR स्पेस वैसे भी डिबेटेबल है, क्योंकि अभी ये सारे जो रैपिडो अब आ रहा है, एटर्नल और स्विगी की कंपटीशन बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में ये QSR स्पेस बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर है, जो और ज़्यादा मार्जिन कमा सकते हैं, उनके पास एक लेवरेज बन रहा है। इनके चार्ट्स आज जो प्रॉफिट बुकिंग आई है सफायर के, कैसे लग रहे हैं सर आपको? एक सेकंड सर, मैं सफायर का चार्ट खोल लूं। जी सर, सफायर 318 पर है, 318 अराउंड, 317 का लो सफायर है। देखिए, जो अभी मैं फूड इंडस्ट्री का देख पा रहा हूँ, अभी तो ड्यू पॉली चल रही थी जोमेटो और स्विगी के बीच में। अभी जब से ये वापिस एक नया कंपटीशन आने के चांसेस चल रहे हैं, तब से ऑब्वियसली रिस्क बढ़ा है। पर मैं कल ही पढ़ रहा था कि जोमेटो और बहुत सारी चीजें इंक्रीज करने वाला है, जैसे कि ये लॉन्ग डिस्टेंस पे अपनी कॉस्ट थोड़ी सी होटल से ज्यादा लेने वाला है, ये सारी चीजें। तो फूड इंडस्ट्री ऑब्वियसली कंपटीशन में है, बट ऐसा नहीं है कि दे कैन नॉट परफॉर्म वेल। और अगर मैं बात करूं सफायर फूड्स की, तो सफायर फूड ऑलरेडी 344 एक जो क्लोज रेंज हम देख रहे हैं, हर बार उधर से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो उसके बाद ही करना चाहिए 344, और मैं कहता हूं उससे 2-4 रुपए ऊपर 345 348 के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होना चाहिए। तब तक इसमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत कट थ्रोट है। જે બિલકુલ, તો અહીંયાથી આપણે વાત થઈ सफायर फूड से आप फोकस करવું चाहिए। इंद्रजीत से आपने वो बोला कि अभी जो जोमेटो जो अभी और नए 2-3 चीज़ें लेके आना चाहता है, तो अभी देखें तो लास्ट 2 दिन से वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। अभी हाँ देखें 220 से अच्छी खासी अपसाइड भी देखने को मिली है स्विगी और जोमेटो, दोनों स्टॉक लास्ट वीक हम देखें तो टॉप गेनर्स में थे। पर हम देखें स्पेसिफिकली एटर्नल यानी कि जो जोमेटो था, कि उसमें लास्ट 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो जिनके पास पोजीशन है उनको किस लेवल के लिए होल्ड करना चाहिए, और अभी फॉर एग्जांपल कि हमारे कोई भी व्यूअर्स को अभी नई खरीदी करनी है, नया बाय करना हो, तो क्या वो ये जो लेवल है अभी उस लेवल पे अभी वो बाय कर सकते हैं सर? जी, अभी तो इस पे वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखनी चाहिए। जो मेरे हिसाब से बाइंग लेवल है वो आएगा 245 के अराउंड। 245 टच करता है तो ऑब्वियसली इसमें फ्रेश बाइंग आनी चाहिए। अभी अगर किसी के पास है इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज मैं इस सेक्टर में सुन नहीं रहा हूँ। ऑब्वियसली लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरी के लिए जोमेटो या इटर्नल जो उसका मेन शेयर है वो बात कर रहे हैं, उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ ऐसा डिसीजिव हमारे सामने आया नहीं है जो हमें मार्केट में देखने को मिले, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से सडन बूस्ट कर रही है। तो अभी के लिए होल्ड करना चाहिए। 245 के लेवल्स पे हम इसको एवरेजिंग करने का सोच सकते हैं डेफिनेटली। तो 225 નું લેવલ છે કે જેને ધ્યાન પર રાખો જો એવરેજ કરવું હોય તો આ છે પરિસ્થિતિ। અન્ય ઘટનારા शेयर्स पर जो नज़र करिए तो आज इवन रियल एस्टेट स्पेस पर नज़र डालें सर, क्योंकि जो ये रेट कट के आपने जो शुरुआत में अपनी कमेंट्री में बात की उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग आई है यहाँ पर, और आज सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग एक अगर मैं NBCC को यहाँ पर काउंट करूँ क्योंकि वो भी है इंक्लूडेड हैं, लेकिन अगर उनको छोड़ें तो फिर मैक्रोटेक डेवलपर्स हैं, 0.3% की प्रॉफिट बुकिंग आज यहाँ पर देखने मिली है। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए। इवन NBCC के चार्ट्स भी देखना चाहूँगा। शुरुआत अगर आप पॉसिबल है तो सर सेक्टोरियल इंडेक्स के साथ करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन जो ये प्रॉफिट बुकिंग आई है निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स की, वहाँ पे कैसे फॉर्मेशन है सर? देखिए, रियल एस्टेट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अभी बनती है, ऑलरेडी काफी हाई पर ट्रेड कर रहा है। पर जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि हाउसिंग डिमांड बहुत अच्छी से बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इस चीज में मैं एक चीज देखता हूं कि आज की डेट में जो एक आम इंसान है वो जो ऑलरेडी जमे हुए प्लेयर्स है जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उनके साथ इन्वेस्ट करना ज्यादा चाहते हैं। तो जैसे कि DLF हो गया, मैक्रोटेक हो गया, ये सारी कंपनियां ऐसी है जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और इनके शेयर्स में 100% काफी अच्छी उछाल आनी चाहिए। तो रियलिटी सेक्टर फॉर अ टाइम वाइल नीचे आ सकता है। मैं मानता हूं कि 990 980 एक इसका बेस बनना चाहिए, वहां से वापस से रिवर्सल लेना चाहिए और उधर से वापस अपटिक करेगा। और जितने भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो DLF या ये सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं उनकी बहुत ज्यादा हैवी डिमांड मार्केट में है, तो ये हमेशा से सेफ बेट रहेंगे और इनको लेना चाहिए। DLF के साथ एक गोदरेज प्रॉपर्टीज का भी नाम लेना चाहूंगा, ये काफी अच्छा नाम अपना बना चुके हैं और एक इंसान कोई भी अगर प्रीमियम प्रॉपर्टी ले रहा है तो मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर इनके थ्रू ही लेना प्रेफर कर रहा है मेट्रो सिटीज में।
જી બિલકુલ. તો ઓવરઓલ અહીંયાથી આપણે વાત કરી रियल एस्टेट કે जहाँ તમારું ખાસ કરીને फोकस होना चाहिए. सर मैं आपके पास डिफेंस थीम लेके आना चाहूँगा. ऑलरेडी हमने देख लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है, और हम जब ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ था तब से लेके अब तक हम देखें तो डिफेंस स्टॉक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली है. पर स्पेसिफिकली BEL में बात करना चाहूँगा आज. BEL और भारत डायनेमिक वो दोनों स्टॉक, क्योंकि आज भी न्यूज़ थे कि जो DRDO तरफ से ₹30,000 के कुछ ऑर्डर मिलने के यहाँ से चांसेस है. वो जो क्विक रिएक्शन सरफेस एयर मिसाइल है उसके लिए ऑर्डर मिलने की यहाँ पे संभावना ज़्यादा है. और ऑलरेडी उसी न्यूज़ की वजह से आज हम देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें नए रिकॉर्ड है फिर से हमें देखने को मिल रहे हैं. तो ओवरऑल डिफेंस सेक्टर का व्यू आप किस तरह से देख रहे हो, और स्पेसिफिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सर? डिफेंस सेक्टर हमेशा से एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ही रखा जाता है. कभी भी डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करते तो हम 1 दिन 2 दिन या 6 महीने के लिए इन्वेस्ट नहीं किया जाता. एक लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है. और एक इंडिया जैसा कंट्री जहां पर कि उसको कंटिन्यूअसली अपना डिफेंस स्ट्रांग रखना पड़ेगा हमारी नेबरिंग कंट्रीज के कारण, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और चाइना हो गया. तो ऑब्वियसली डिफेंस में हमेशा हमारी स्पेंडिंग काफी अच्छी रहेगी. इंडिया ऑलरेडी डिफेंस के मामले में टॉप कंट्रीज में ट्रेस करता है. तो इस कारण से डिफेंस सेक्टर को लॉन्ग टर्म रखने में ही फायदा है. अभी ऑपरेशन सिंदूर के कारण ये सारे स्टॉक्स काफी ऊपर आ चुके हैं और इनमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं. तो इनको रखना चाहिए थोड़े से. मैं देखूं अगर कि 380 385 तक अगर बेल हमें मिलता है तो वो भी एक सही प्राइसिंग रहेगी. क्योंकि अगर मैं सेक्टर की पीई की बात करूं तो सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ज्यादा नहीं है. जैसे ऐसे इनका एक शेयर है मस्काओ डॉकयार्ड शिप लिमिटेड, 32,000 करोड़ के ऑर्डर्स लेके बैठा है. और अगर हम भविष्य की बात करें तो उसके पास 2 ऑर्डर और आ सकते हैं, P-15 फ्रिगेट के और एक और, तो 1.25 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक. ऐसे अगर हम बेल की बात करें तो इनके पास भी एक ह्यूज ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है. तो ये कंपनी फ्यूचर में आने वाले जितने भी शॉक्स हैं उनको अपनी इस ऑर्डर बुक से ही ऑब्जर्व कर सकता है. तो ये बहुत सेफ बेट है, बहुत अच्छी बेट है और इनको लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना चाहिए जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं. બિલકુલ. તો ફોકસ આ રીતે આપણે અહીંયાથી રાખવાનું છે ડિફેન્સ સેક્ટર માટે. આવો ધીરે ધીરે ક્લોઝિંગ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. ક્વિક બ્રેકનો સમય, વિરામ લઈએ અને વિરામ બાદ આજના ક્લોઝિંગ પર ફોકસ કરીએ. બ્રેક તરફ સ્વાગત છે. ભારતીય માર્કેટ્સ પર નજર કરીએ. સતત બીજો દિવસ છે કે જ્યારે લાલ નિશાનની કેન્ડલ તમને નિફ્ટી બતાવતો જોવા મળી રહ્યું છે. આજનું ક્લોઝ બહુ જ રસપ્રદ, અને જે રીતે વચ્ચે એક અચાનક ઉછાળો શુક્રવારે આવતો જોવા મળ્યો તે બાદ સોમવાર અને આજે મંગળવાર આપણે ઘટાડો બતાવીએ છીએ, પણ એટલો મોટો ઘટાડો નથી બતાવી રહ્યા કે ગેપ ફિલ કરવા આવ્યા હોઈએ. અને જો મજબૂતી છે તો તે પણ દિવસની શરૂઆતમાં આવે છે અને પછી થોડો ઘટાડો પ્રોફિટ બુકિંગ આવી રહ્યું છે તેવું 2 દિવસની પાછલી કેન્ડલને જોતા આપણને સમજવા મળે છે. આવી જ રીતે તમે બેંક નિફ્ટી નજર કરો. ક્લોઝ 25,091 છે, સેટલ થઈ જવા દઈએ. લગભગ આ જ રીતનું ક્લોઝિંગ તમને જોવા મળશે 25,100 આસપાસનું. અને જો બેંક નિફ્ટી પર નજર કરીએ તો 56,579, એટલે કે 56,600 ને નીચેનો ક્લોઝ તમને લગભગ મળવા જઈ રહ્યો છે. એટલે પરિસ્થિતિ ડેફિનેટલી થોડી કોશિયસ જરૂર બનતી જોવા મળી રહી છે. પણ સારી વાત મેં તમને શરૂઆતમાં કહ્યું એમ એ કે વિક્સ તમારો 14થી પણ નીચે બંધ આપી રહ્યો છે. આજે 13.93નો આજનો લો બન્યો છે, 13.98 आसपासનું અત્યારે फिलहाल क्लोजिंग જોવા મળી રહ્યું છે. सर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लोज देखने मिली है. डेली चार्ट्स पर देखें तो निफ्टी जो है वो 2 दिन ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक रेंज में अटक रहे हैं. अगर एक हफ्ते के चार्ट्स पर नज़र डालें, क्योंकि पिछला हफ्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और एक फाइनली ब्रेकआउट अपने को पिछले हफ्ते मिला था, उसके बाद इस हफ्ते अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है. तो निफ्टी आज सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन आइडियली तो पटाखे फूटते हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ नहीं और थोड़ा सा लीनियर क्लोज देखने मिला. आज के क्लोज को रिव्यू कर लेते हैं सर. आज की अगर हम क्लोज की बात करें तो मार्केट ने वापस से जो एक रिसेंट ब्रेकआउट देके नीचे को क्लोजिंग दी है. मैंने पहले ही बताया कि जो आरबीआई ने पॉलिसी दी थी अभी मेजरली अफेक्ट उस चीज का है. तो अभी उस जगह पे मैं देख रहा हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है. थोड़ा सा और निचले लेवल्स के लिए वेट करना चाहिए, एक बार प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो जाए. और ये जो एक कंसोलिडेशन जोन है बेसिकली 25,000 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो हमें बहुत ज्यादा खतरा है. तब तक मैं मानता हूं कि अब भी कुछ दिन तक यहां पर ही कंसोलिडेशन जोन चल सकता है. कंसोलिडेशन जोन के बाद में जब कोई फ्रेश न्यूज हमें मिलती है या कोई नई अपब्रिंगिंग हमें मिलती है, उसके बाद ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि फर्दर अपसाइड के लिए हमें वेट करें या थोड़ा सा और नीचे का वेट करना चाहिए.
જી બિલકુલ તો ઓવરऑल અહીંયાથી આપણે વાત થઈ માર્કેટના ક્લોઝિંગ ઉપર જે તમાरा खास કરીને फोकस होना चाहिए। सर मैं आपके पास कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक के बारे में पूछना चाहूँगा। हम लास्ट 2-3 वीक से देखें तो अच्छे खासे अपसाइड दिखा रहे, चाहे CDSL हो, MCX हो, एंजल वन हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो अच्छी खासी अपसाइड ऑलरेडी देख चुके। हाँ, आज ओपनिंग में देखें तो प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा माहौल बना हुआ था, लेकिन हम देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन वापिस हम देखें तो वो स्टॉक 3000 के ऊपर जाके क्लोज होता है। तो देखें MCX वहाँ पे 3% की प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग 1% की प्रॉफिट बुकिंग के साथ ही हुआ। CDSL भी देखो तो वहाँ पे भी अभी वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अभी भी बचा हुआ है, लेकिन जिस तरह से इतनी अपसाइड हुई है तो क्या नई खरीदी अभी इस लेवल पे करना चाहिए? और जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग हो तो उनमें क्या व्यू रहेगा? उनको अभी होल्ड करना चाहिए कि अभी पार्सली प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए सर? बिल्कुल, ये एक्चुअली अभी जो मैं देख पा रहा हूँ मार्केट काफी दिनों से बहुत ऊपर चढ़ चुका है। BSE की बात करें तो 24-2500 के लेवल से डायरेक्ट ये 3000 के लेवल्स को टच कर चुका है। और इसका डायरेक्ट सा रीजन है कि अभी भी इंडिया का जो, अगर हम फाइनेंशियल पेनिट्रेशन की बात करें तो वो उतना ज्यादा नहीं है। जैसे जैसे फाइनेंशियल पेनिट्रेशन बढ़ेगा उतने ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिव होंगे और इनके लिए ये सारी चीजें पॉजिटिव वर्क करेंगी। पर अभी की कंडीशन में मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। RSIs ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरिटरीज में है, कुछ टाइम रुक के 2900 के लेवल नई एंट्री के लिए वापस से सही रहेगा। अगर मार्केट नीचे आता है, नई क्वांटिटी ऐड करना मुझे इस वक्त पे BSE में सही नहीं लगता है। बहुत हाई लेवल्स हैं, थोड़ा वेट करना चाहिए। ઓકે, થોડું હજુ પણ રાહ જોવાની સલાહ અહીંયાથી ખાસ તમને બનતી જોવા મળી રહી છે, નજર રાખવાની રહેશે। ઓકે, આગળ વધીએ। તમે સેક્ટર સ્પેસિફિક જે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ તેમાંથી થોડા બહારની તરફ આવીએ તો 2-3 સ્ટોક્સ એવા છે કે જે ખરેખર હાઇલાઇટ થતા હોય। एक सर पेटीएम 197 डेफिनेटली हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे 1000 की तरफ अप्रोच कर रहा है। एक बहुत बड़ी स्टोरी थी इसके साथ जो कि अब कंक्लूड होती हुई नज़र आई, और इनके जो मेन प्रमोटर्स थे जो विदेशी थे, अब वो भी बेच बेच के आखिरकार अब फ्री हो चुके ऑलमोस्ट, ऐसा मानना चाहिए। तो बड़ा सप्लाई आने की चिंता नहीं है। स्टोरी अब देखिए ग्रोथ की तो इंटैक्ट है, रिजल्ट्स धीरे धीरे बताने लगे हैं कि हाँ मैनेजमेंट प्रोएक्टिव है और पैसों की भी अब तो दिक्कत शायद नहीं ही होगी। कैसे समझें सर? आज तो डेफिनेटली नुकसान है, लेकिन अगर एक साल का ग्रोथ देखें तो 146 ऑड % का गेन पेटीएम दे चुका है सर। पेटीएम इंडिया की बहुत ही एक डोमिनेंट फिनटेक कंपनी हम बोल सकते हैं। दो पेटीएम का कभी भी अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं रही है, पर जो अभी हेडविंड्स आए थे और जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो शॉक्स आए थे, मैं मानता हूं कि उन शॉक्स को अभी पेटीएम ऑब्जर्व कर चुका है। और विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इसके लिए कंडीशंस ईज होंगी, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स के लिए इसकी RBI से पेटीएम के मैनेजमेंट की बात चल रही है, तो इवेंचुअली मैं देखता हूं कि पेटीएम का फ्यूचर अच्छा है। पर फिर भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी ओवरऑल मार्केट के वैल्यूएशन स्ट्रेच हुए तो एक एक स्टॉक उसके साथ ऊपर चढ़ा है, थोड़ा सा नीचे आने देना चाहिए। 920-930 के लेवल पर एक बार आ जाए तो वो एक अच्छा लेवल होगा बाइंग करने के लिए। उसके बाद बाइंग करेंगे तो हमें नए फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने को मिल सकते हैं इस साल के अंदर, जो कि लास्ट अगर मैं एक ब्रेकआउट देखूं तो 1030 के करीब का है। तो एक बार 920 टच कर ले, उधर से अगर बढ़ना स्टार्ट करता है तो मैं मानूंगा कि काफी स्ट्रेंथ के साथ बढ़ना स्टार्ट करेगा। वॉल्यूम्स अब इसमें इंक्रीज होने लग गए हैं। मैनेजमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है कंपनी को वापस से प्रॉफिट में लाने के लिए। हालांकि प्रॉफिट में कभी थी नहीं, पर अब लॉस बहुत कम होते जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव बिल्टअप हमें देखने को मिल रहा है पेटीएम में। जी बिल्कुल। तो ओवरऑल અહીંયાથી આપણે વાત થઈ પેટીએમ, જ્યાં તમારે ખાસ કરીને ફોકસ હોવું જોઈએ। બીજા સ્ટોક સ્પેસિફિક નજર કરો तो आज अपने सारी भी तेजी अपने जो मड़ी इंजीनियर्स इंडिया, नवकार कॉर्पोरेशन। सर मैं आपके पास नवकार कॉर्पोरेशन लेके आऊँगा। मैंने भी आज एक्स पे अपने पोस्ट किया था ये, क्योंकि इसमें थोड़ा बाइंग सेटअप अच्छा बना है। स्पेसिफिकली हम हैकिंग ऐसी पैटर्न में देखें तो वहाँ पे आज एक बाइंग सेटअप बना हुआ था, और ये स्टॉक देखें तो बार बार हमें 100 का एक लेवल था, वहाँ कंसोलिडेशन करता हुआ देखा था। लेकिन फाइनली ये महीने में हमें 17% रिटर्न मिला है, और ये 115 के ऊपर आज क्लोजिंग भी देखें तो 118 का हमें क्लोजिंग आने को मिला है। ऑल टाइम हाई देखें तो 176 है। तो आज के चार्ट और जो डेली चार्ट पे हम देखें तो आपको लग रहा है कि अभी भी जो अपसाइड है वो बाकी है सर नवकार कॉर्पोरेशन?
बिल्कुल, नवकार का चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर हम देखें 118 का इसने क्लोज दिया है, जो कि क्लोजिंग बेसिस पे पिछले कई दिनों का इसने हाई ब्रेक किया है। साथ ही साथ वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक कर रहा है, जो सबसे अच्छी चीज मुझे देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स अच्छे हैं और अगर आरएसआई लेवल्स देखें तो अभी भी ओवर सोल्ड जोन से ऊपर को चढ़ रहा है। आरएसआई लेवल्स भी अभी इसमें मार्जिन दिखा रहे हैं, वॉल्यूम्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको इधर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, जो कि यहां से 130 135 तक इजीली इसको ड्रैग करके लेके जा सकती है। ઓકે સો નવકાર કોપ અહીંથી ખાસ નજર તમારે રાખવાની રહેશે. आगे बढ़ते हैं थोड़े से. अगर मैं 1 ईयर टॉप गेनर सर पूछ लिया है आपको, तो 1 ईयर टॉप लूज़र भी पूछना चाहिए, और उसमें है स्टर्लिंग विल्सन सोलर. 308 की क्लोज है आज की. लेटली थोड़ा सा बाइंग आया ज़रूर है सर, आप अगर बॉटम से देखिए तो, लेकिन फिर भी 1 ईयर रिटर्न्स 59.4% की नुकसान के साथ दिखा रहे हैं. तो सवाल सबसे बड़ा यही रहेगा कि क्या ये साल पूरा ऐसे ही नुकसान में जाएगा, या अब थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है. रिपीट कर सकते हैं, स्टर्लिंग टूल्स या क्या नाम लिया, मैं सुन नहीं पाया. यस सर, SW सोलर. SW सोलर, जी सर. ओके. तो सवाल यही है कि क्या पूरे साल नुकसान में ही निकालेंगे, कि अब थोड़ी सी रिकवरी आप एंटिसिपेट कर रहे हैं इंदर सर? जी. तो आज की सर हाई 310 है और 302 की लो बनाई थी, लेकिन फिर 308 की क्लोज है सर इंट्राडे. जी बस एक मिनट. जी नो प्रॉब्लम. और एनुअली भी देखिए तो सपोर्ट काफ़ी अच्छे 250 280 के अराउंड लेने की कोशिश की है, और मैंने भी एक बार डिस्कस ज़रूर किया था. आप देखिए सर कैसे लग रहे हैं चार्ट्स? बिल्कुल, चार्ट्स इसका अच्छे लग रहे हैं, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो सोलर वाली है, जितनी भी कंपनीज है, इनमें ग्रोथ काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर इनका ब्राइट है. सनराइज इंडस्ट्री के सेगमेंट में ये आती हैं, तो ऑब्वियसली ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है. और मैं जो देख रहा हूं कि 17 EMA 50 EMS पे ये सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर उठना स्टार्ट हो रहा है. बट फिर भी जो एक लेवल देखने वाला है वो है 309 रुपए का. अगर 309 रुपए को क्लोज करता है तो हो सकता है इस बार अपना बेस बना के अपटिक करे, पर अगर वहां से रेजिस्टेंस लेता है तो वापस अपने लोअर साइड 280 पर आएगा, और वहां पर हमें रीडिसाइड करना चाहिए कि हमें एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है. टिल देन अभी इसको वेट एंड वॉच की कंडीशन में रखना बेटर है. जी बिल्कुल, तो वेट एंड वॉच में रखेंगे अभी SW સોલર કે જ્યાં તમારા ખાસ કરીને ફોકસ હોવું જોઈએ. બીજા આપણે નજર કરીએ બ્રેકઆઉટ સ્ટોક, તો આપણને એક એન્જિનિયર્સ इंडिया કે જ્યાં આપણને સારું એવું ब्रेकआउट જોવા મળ્યું છે. इंद्रजीत सर, मैं आपके पास इंजीनियर्स इंडिया लेके आना चाहूँगा. वीकली चार्ट एक बार सर ओपन कीजिए, तो उसमें देखेंगे तो हम रिवर्स कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला. ऑलमोस्ट लेवल था 210 का. उसके ऊपर हम लास्ट 3 वीक से हम अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, और ऊपर एक गैप है 252 का जुलाई 2024 का. तो चांसेस एक तो है कि वो गैप हम एक बार फिलअप करते हुए देखें, पर आगे हम देखें तो ऑल टाइम हाई 300 के आसपास है. तो ये जिस तरह से जो कप विथ हैंडल पैटर्न का जो ब्रेकआउट आया, आपको लगता है कि आगे ये तेजी और स्पॉन्सर हो सकती है सर? ऑब्वियसली इंजीनियर्स इंडिया हमारे देश के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है. ये रत्नों में गिना जाता है इंडिया के. काफी अच्छी कंपनी है और इसको होल्ड रखना चाहिए. कुछ इसमें वीकनेस कुछ टाइम पहले देखने को मिली थी, जिसका हमने एक बार फॉल भी देख लिया है. पर अगर अभी हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में 149 का 147 के अराउंड का लो बना के, और अभी ये 242 को क्रॉस करने के लिए रेडी है. क्रॉस करके ही क्लोजिंग दी है. तो इस बार उम्मीद है कि ये नए हाईज बनाने के चांस बनाता है, क्योंकि काफी नीचे से जब ये उठना चालू हुआ तो काफी अच्छी ग्रोथ के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ इसने अपटिक किया है. तो ऐसे टाइम पे हमेशा उम्मीद रहती है कि कुछ ना कुछ बेहतर कंपनी में होने वाला है. और इंजीनियर्स इंडिया में पर्सनली जितनी रिसर्च कर चुका हूं, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी, और इंडिया के बैकबोन बनाने का काम कर रही है ये कंपनीज. तो ऑब्वियसली इधर से ब्रेकआउट देके 290 के लेवल वापस जल्द दिखाने की काबिलियत रखता है. तो व्यू आ प्रमाणे અહીંયાથી ખાસ રાખવાનું રહેશે. ओके सर, आगे बढ़ते हैं. स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी अच्छी डिस्कशन हमारी हो रही है, और इनफैक्ट मैं योमिक को भी यही कह रहा था कि पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि पहली बार जुड़ रहे हैं. काफ़ी अच्छे से आपने इन डेप्थ रिसर्च भी आप हमारे साथ पेश कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हम नज़र रखेंगे. लेकिन आज एप्पल का इवेंट था सर देर रात, और यहाँ पे उन्होंने नए ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह लॉन्च कर दिए हैं. तो एप्पल की नाम से रेडिंगटन को मैं आपके सामने लाना चाहूँगा, क्योंकि रेडिंगटन बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है भारत में एप्पल प्रोडक्ट्स का. रेडिंगटन ने ईयर टू डेट देखिए तो बहुत ब्रिलियंट मूव दिखाई है. अब 300 को नॉक कर रहा है स्टॉक. 300
क्या बड़ा रेजिस्टेंस है या नहीं, पहला सवाल ये बनेगा। और दूसरा, क्या इससे आगे ये स्टॉक सस्टेन कर सकता है? ऑलरेडी काफ़ी अच्छी मूव दिखाई है, तो क्या अब ये मूव कंटिन्यूएशन दिखाएगी या नहीं? इंदर सर। ऑब्वियसली आज की डेट में अगर हम देखें तो कोई सी भी ऐसी अगर मेजर वर्ल्ड टेक कंपनी है तो इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट किए बिना वो बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मार्केट बेस बनाती है। और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग्स के बावजूद भी एप्पल ने कोई अपना स्टांस बदला नहीं है टू प्रोड्यूस इन इंडिया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि ये जितने भी उन चीजों से रिलेटेड स्टॉक्स हैं ये अपटिक करेंगे। और जैसे जैसे हमारी कंट्री में परचेसिंग पावर बढ़ रहा है तो वैसे वैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। लोग पहले सैमसंग से वन प्लस से आईफोन की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक्स ऑब्वियसली काफी अच्छे स्टॉक्स हैं जिन पे हमें फ्यूचर में ग्रोथ देखनी चाहिए। और अगर रिसेंटली बात करें तो स्टॉक ने अराउंड 292 का हाई मारा था, थोड़ा सा वहां से 300 के अराउंड का हाई मारा है, वहां से नीचे आया है पर वापस से सपोर्ट लेके उठना स्टार्ट कर दिया है। तो ये फ्यूचर के लिए हम स्टॉक को बिल्कुल रख सकते हैं। अभी कंप्लीट एंट्री ना लेते हुए हम छोटी एंट्री ले सकते हैं, ताकि अगर नीचे आता है तो हम इस पे एक री एंट्री बनाए। बट हाँ, इसमें एंट्री लेके हम हमारी पोजीशन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सर आपने कहा सैमसंग से आगे बढ़ रहे हैं लोग, मैं तो सैमसंग पे ही अटका हूं सर। नहीं सर, पर जैसे जैसे परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, ये कैपिटलिज्म सोसाइटी का रूल है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जाने की सबकी इच्छा हो जाती है। डेफिनेटली वो लाइफस्टाइल का भी एक है, लेकिन अपने ये फाइनेंस से जुड़े लोग होते हैं, उनको पता है कि सर पैसे कहाँ से बचाने और कहाँ लगाने हैं। तो मैं तो अभी भी सैमसंग के साथ ही अटका हूं। मेरे भी वही पुराने फोन ही काम आते हैं हमेशा। डेफिनेटली सर, ये एक हमारी डिस्कशन हो गई रेडिंगटन पे, तो ऐसे ही ईयर टू डेट एक नुकसान वाला स्टॉक भी मैं आपके सामने लाना चाहूँगा, और ये है वेदांत फैशन। आप देखिए 800, यस, वेदांत फैशन 805 की क्लोज है, 37% ईयर टू डेट घटा हुआ है ये स्टॉक। आज 800 तोड़ा था, फिर से रिकवर किया, क्लोज 800 के ऊपर की है। कैसे देखा जाए सर? सर वेदांत फैशन जिस हिसाब से गिरा है, मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें बहुत ज्यादा हमें बाइंग बनानी चाहिए। कुछ समय वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखनी चाहिए, क्योंकि वापस से इसने एक रेजिस्टेंस ले लिया है अपने पुराने लेवल से थोड़ा सा पहले ही, और 50 EMA से रेजिस्टेंस लेने के बाद ये नीचे गिर रहा है। तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखनी चाहिए। 700 का लेवल आता है, वो एक अच्छा सपोर्ट इसके लिए वर्क करेगा। तब तक ले वेट एंड वॉच, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लायक मुझे अभी इसका चार्ट दिख नहीं रहा है। જી બિલકુલ, તો ઓવરઓલ અહીંથી આપણે વાત થઈ વેદાંત ફેશન, જ્યાં તમારું ફોકસ હોવું જોઈએ. બીજું આજે આપણે ન્યૂઝ સ્પેસિફિક નેચર કરો તો ડીમાર્ટમાં જે સમાચાર હતા, 634 કરોડની આપણને શેરમાં બ્લોક ડીલ થતી જોવા મળી, 4000ના ભાવે આપણને અહીંથી બ્લોક ડીલ થતી જોવા मड़ी है. इंदिराजीत सर, मैं आपके पास डीमार्ट लेके आना चाहूँगा, एवेन्यू सुपरमार्ट. आज ब्लॉक डील के यहाँ पे न्यूज़ थे, 634 करोड़ के अमाउंट के यहाँ पे ब्लॉक डील हुए, अराउंड 4000 रुपीज़ के प्राइस पे हुआ, यानी कि कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उससे 4.2% डिस्काउंट पे ये ब्लॉक डील हुआ. और ऑलरेडी हम देखें तो आज इंट्राडे में 3928 के हमें लो भी बने, और लेकिन क्लोजिंग 4080 का हुआ. ठीक है, चलो ये ब्लॉक डील जो होना था वो हो गया, पर ओवरऑल स्टॉक सर आपको कैसे लग रहा है? स्टॉक काफी अच्छा है. अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो 2021 में करीब 1100 करोड़ के रेवेन्यू से 2700 करोड़ के रेवेन्यू के अभी नेट प्रॉफिट को 1100 करोड़ के नेट प्रॉफिट से 2700 करोड़ के नेट प्रॉफिट तक ये पहुंच चुका है. और अगर 2021 और 2025 के लेवल्स की रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो चुका है. 24,000 करोड़ से 60,000 करोड़ के रेवेन्यू को डीमार्ट टच कर चुका है. और आज की डेट में जिस तरह से हम इसका एक्सपांशन देख रहे हैं, और अभी तक कोई मेजर कॉम्पिटिशन इसका है नहीं, तो ऑब्वियसली डीमार्ट हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लॉन्गर टर्म के लिए होना चाहिए. बहुत अच्छी इन्होंने अपनी सप्लाई चेन बनाई हुई है. इनकी सप्लाई चेन ही इनकी स्ट्रेंथ है. बेसिकली डीमार्ट की अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे, बहुत लंबे समय तक इन्होंने अपने मार्केट को, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के पहले मार्केट में R&D किया है. तो वो R&D आज की डेट में इनको काम आ रहा है. जैसे आप देखेंगे बिग बाजार इनसे पहले मार्केट में था, पर इनकी रिटेल चेन इतनी स्ट्रांग थी कि बिग बाजार ये सारे जमे हुए प्लेयर्स को हटाने के बाद डीमार्ट इस स्टेज पे पहुंच चुका है. और आज की डेट में भी रैपिड एक्सपेंशन पे ये वर्क कर रहे हैं. तो जब रैपिड एक्सपेंशन पे वर्क करता है तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि फंडिंग उन जगहों पर जाती है. पर फ्यूचर में इसके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिलेंगे. और डीमार्ट अपने खुद के प्रोडक्ट्स इतने लॉन्च कर रहा है कि उसके कारण भी इनका रेवेन्यू प्रॉफिट काफी इंक्रीज होने के चांसेस हैं.
ઓકે, સો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે. ડીમાર્ટ, એवेन्यू सुपरमार्ट्स આપણે ध्यान रखीશું. शॉपिंग की नाम पे एक और काउंटर मैं लेके आना चाहूँगा सर आपके पास, और वो है ब्रेन बीज सॉल्यूशंस यानी कि फर्स्ट क्राई. आईपीओ आया, वापस उसके रिपीट बाद करेंगे, मैं सुन नहीं पाया. ब्रेन बीज सॉल्यूशंस यानी कि फर्स्ट क्राई सर. ब्रेन ब्री आईपीओ आया, उसके बाद से 734 से 286 52 वीक लो है. 286 से ये स्टॉक आज 396 की क्लोज हमें देखने मिली, मतलब कि लो से काफ़ी अच्छे से ये स्टॉक रिकवर किया है. सवाल ये हो रहा है कि ये जो 400 का लेवल अब है, क्या यहाँ पर अटकेगा ये स्टॉक? जी, मुझे भी लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी अभी मुश्किलें हैं. बिल्कुल. क्योंकि वॉल्यूम्स के साथ मार्केट बढ़ना शुरू हुआ था, पर फिर भी हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम सारी इरोड आउट हुई और मार्केट ने वापस से नीचे की तरफ का रुख कर लिया है. तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा समय रुकना चाहिए. थोड़ी सी ओवरसोल्ड ओवरबॉट टेरिटरी में वापस से दिखने लग रहा है. अगर हम कुछ इंडिकेटर्स की बात करें तो इस पे वेट करना चाहिए और निचले लेवल्स पे ही इस पे बाइंग की कोशिश करनी चाहिए. अभी के लिए वेट एंड वॉच. જે બિલકુલ તો ઓવરઓલ અત્યારે વેઇટ એન્ડ વોચ કરવાની સલાહ બની રહી છે. ફર્સ્ટ ક્રાય એટલે કે બ્રેન બ્રીસ સોલ્યુશન, જ્યાં તમારે ખાસ કરીને ફોકસ હોવું જોઈએ. બીજા સ્ટોક સ્પેસિફિક નજર કરો તો ઇવન टाटा टेक्नोलॉजी તમે નજર કરો, ત્યાં તમને न्यूनतम स्तर से सारी भी खरीदारी आई है. इंद्रजीत सर, मैं आपके पास टाटा टेक्नोलॉजी लेके आऊँगा. ये स्टॉक देखिए तो काफ़ी दिनों के बाद चलना स्टार्ट हुआ है. हम देखें जब आईपीओ आया, आईपीओ में लिस्टिंग में अच्छा खासा पैसा सबका बना, लेकिन जब स्टॉक 1000 के डाउन साइड जब आया, तब देखें तो ये स्टॉक ने एक बार 600 के लेवल टच किए थे, और 640 का है कि वहाँ से वो नॉन स्टॉप ये स्टॉक ऊपर आया है. ऊपर 750 के आसपास उसने टाइम भी पसार किया, और फाइनली अभी देखें तो 787, और अभी लास्ट एक वीक का चार्ट देखें तो वहाँ पे हमें थोड़ा इनसाइड बाय ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है. तो किस तरह से सर आप देख रहे हो टाटा टेक्नोलॉजी इतना अपसाइड के बाद सर? टाटा टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली ऊपर के लिए काफी अच्छा शेयर है. सबसे पहली बात तो इंडिया है. इंडिया में अगर टाटा कोई सी चीज लॉन्च करता है तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद ही करता है. तो टाटा टेक्नोलॉजीज ऑब्वियसली बाय करना चाहिए. अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो नेट प्रॉफिट इसका काफी अच्छा चल रहा है. पिछली बार से थोड़ा सा कम है, 6-7 करोड़, 600-700 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इसका. रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है. किन कुछ कारणों से नेट प्रॉफिट पिछले साल बस थोड़ा सा लेग आउट किया है, अदरवाइज कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स में है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है. तो यस, टाटा टेक्नोलॉजी शुड बी इन और इसको बाय करना चाहिए. ठीक है, तो टाटा टेक के ऊपर ऐसे ही नज़र हम बनाए रखेंगे. सर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि क्रूड अब लेटली थोड़े से प्राइस इंक्रीज देखते हुए हम नज़र आ रहे हो. जैसे आपने शुरुआत में बताया था, चीन और अमेरिका के बीच में अगर बातचीत होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रूड के प्राइसेस और एलिवेट होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सुधरने वाला है. लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर लेटली आपने देखा हो तो कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं जो थोड़ा सा बुलिश नज़र आ रही थी, स्पेशली HPCL और BPCL के लिए. तो इन दोनों के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा. इंद्रजीत सर. BPCL ऑब्वियसली एक रिटेल सेक्टर की बात करें तो काफी अच्छा घुस चुका है ये चीजें BPCL. और जनरली अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मेरे पास कुछ इस चीज से रिलेटेड बिजनेस है, तो मैं देखता हूं कि BPCL बाकी चीजों के मुकाबले हमेशा प्रोडक्ट में थोड़ा सा सुपीरियर रहता है. ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है. और अगर अभी की हम बात करें तो ऑलमोस्ट अपने जो एक रेजिस्टेंस है 323 324 के, वहां पर BPCL ट्रेड कर रहा है. और फ्यूचर इन कंपनीज का बहुत अच्छा है. तो ये कंपनीज भी हमें रखनी चाहिए, पर इन कंपनीज में भी हमें एंट्री एट वंस नहीं लेनी है. अगर इस मूवमेंट पे आप एंट्री लेना चाहते तो आप एक छोटी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं. और अगर किसी कंडीशन के कारण मार्केट वापस ड्रैग डाउन होता है तो आप उसको वापस से एवरेज आउट करके और अपनी जो प्राइसिंग है वो नियर टू द कॉस्ट हमेशा रख सकते हैं. जी बिल्कुल, तो ઓવરઓલ અહીંયાથી આપણે વાત થઈ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપની કે જ્યાં તમારે ખાસ કરીને ફોકસ હોવું જોઈએ. વાત થઈ BPCL, HPCL, દરેક સ્ટોક કે જ્યાં તમારું फोकस હોવું જોઈએ. सर, एक स्टॉक में बात करना चाहूँगा SBI कार्ड. फंडामेंटली भी ये स्टॉक है कि हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अभी कंजम्पशन थीम है जो फोकस में आ रही है. दूसरी चीज़, अगर हम टेक्निकली चार्ट देखें तो वहाँ भी अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है. नीचे देखें तो हम 860 का लेवल था, ऊपर 920. ये जो रेंज थी उसके बीच में काफ़ी टाइम उसने स्पेंड किया. उसके बाद फाइनली 10 EMA से सपोर्ट लिया और उसने 4 डिजिट में आया. आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन 1000 के ऊपर क्लोजिंग आया है. तो अभी सर क्या व्यू बन रहा है SBI कार्ड के लिए ऊपर सर?
SBI कार्ड थोड़ा सा वेट करके, अभी 1000 है, यहाँ से मैं बस 950 970 की रेंज में एक बार अगर आ जाता है तो ये काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएगा। SBI कार्ड्स का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। जिस तरह से अभी RBI ने रेट कट की है तो बैंक्स के पास एक्सेस पैसा आने वाला है। नवंबर तक 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बैंक्स के पास आने वाली है। उतना ही ज्यादा क्रेडिट एक्सपांशन करेंगे, जिसमें क्रेडिट कार्ड्स ऑब्वियसली एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि आज की डेट में एक जो इंडियन सेविंग माइंडसेट था वो आज की डेट में एक्सपेंडिचर के साइड ज्यादा जाते जा रहा है। लोग क्रेडिट कार्ड्स पे लोन लेके जिस हिसाब से सारी चीजें बाय कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड्स की और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने वाली है। और SBI कार्ड ने हमेशा से अपने आप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो SBI कार्ड अगर 950 या 950 to 970 की रेंज में आता है तो इसको बाय करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। और अगर अभी मैं बात करूं तो 1100 का एक लेवल जो कि हम इन नियर फ्यूचर विद इन अ ईयर 2 ईयर हम इसमें देखने को वापस देख सकते हैं। तो इट्स अ बाय एंड होल्ड अपॉर्चुनिटी। બાય એન્ડ હોલ્ડ SBI કાર્ડ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કાઉન્ટર નજર અહીંયાથી રાખવાની રહેશે। आगे बढ़ते हैं सर, एक और स्टॉक जो आज हाईलाइट हुआ था ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर, वो है पिडिलाइट। पिडिलाइट पर एक रिपोर्ट आई थी और रिव्यू दिया गया है ओवरवेट का। और यहाँ पे JP मॉर्गन कह रहे हैं 3300 के टारगेट्स रख दीजिए। डोमेस्टिक डिमांड उनको इंटरेस्टिंग लग रही है और स्ट्रॉन्ग है, रेजिलियंट है, नंबर 1। और दूसरा, वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में देखने मिलेगा, ऐसा JP मॉर्गन का मानना है। सर रिव्यू ले लें हम। पिडिलाइट को थोड़ा टाइम अभी रुकना चाहिए। हम देख रहे हैं कि 15 मई को और अभी रिसेंटली 2 जून को दोनों बार 3080 के लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ चुका है। इवन दो अगर हम बात करें तो जो 30 मई था, 30 मई को वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे थे। उस टाइम उम्मीद थी कि ब्रेकआउट करके ऊपर को निकलेगा, पर वापस से नीचे आ गया और नीचे ये कंटिन्यूअसली अगर हम देखें तो 50 EMA का सपोर्ट उठाते हुए डेली चार्ट पे ऊपर को उठ रहा है। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक बार 3080 के लेवल्स को क्रॉस कर दे तो इसमें कंफर्टेबल बाइंग हम सोच सकते हैं। જે બિલકુલ તો ઓવરઓલ અહીંથી પીડીલાઇટ કે જ્યાં આપણે અહીંથી વેઇટ કરવાની સલાહ બની રહી છે, જ્યાં તમારું ફોકસ હોવું જોઈએ। માર્કેટ ઉપર નજર કરીએ તો 25100 કે જ્યાં આપણને ઓલમોસ્ટ બિલકુલ ફ્લેટ ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું। બેંક નિફ્ટી કે જ્યાં આપણને 56600 ની ઉપર ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું, પરંતુ હા ત્યાં થોડીક વેચવાલી તમને અહીંથી વધારે જોવા મળી છે। સર समय हो चुका है विदाई लेने का, आपकी तरफ से सर डिस्क्लेमर। बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी शेयर्स मैंने बताए हैं इनमें मेरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ना ही मेरा कोई सा भी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इंदर सर आपका हमारे साथ जुड़े। और आई होप कि आपने भी थोड़ी सी जो गुजराती हम बोलते हैं बीच में वो आपने भी एंजॉय ज़रूर की होगी। बहुत अच्छा लगता है और जब भी गुजरात आता हूँ बहुत मजा आता है। जब रियल में रहता हूँ तो काफी कुछ समझ आ जाता है। ऐसे कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल, हम आशा रखते हैं अगली बार अब आप गुजरात आए तो हमारे स्टूडियो की भी मुलाकात ज़रूर लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। તો દર્શક મિત્રો, ભારતીય માર્કેટ્સ ક્લોઝ થયા છે ફ્લેટ। બેંક નિફ્ટીએ નર્વસનેસ બતાવી છે સતત બીજો દિવસ, અને આવી જ સ્થિતિમાં મિડ કેપ સ્મોલ કેપ પણ હવે થોડા નર્વસનેસને પાર્ટિસિપેટ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। સારી વાત એ છે કે વોલ્ટિલિટી કંટ્રોલ થઈ છે, બટ ખરાબ વાત એ છે કે માર્કેટ્સ આળસમાં આવી ગયા છે। હવે આ વોલ્ટિલિટી અને માર્કેટ્સ આ બંનેનું કોરિલેશન કઈ રીતે આગળ વધે છે તે તો સમય જ બતાવશે। આ સાથે જ આ કાર્યક્રમમાં હાલ બસ આટલું જ। મને અને યોમિકને આપશે રજા। આગળના અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ કેપિટલ ગુજરાત। प्रेजेंटेड बाय ट्रेड बुल्स। अब ट्रेडिंग सबके बस की बात है।